رمضان 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 مغفرت کا ہو گیا سامان پھر رب کا آیا خاص ایک مہمان پھر۔ بلیسڈ نائٹ اسپیشل ٹرانسمیشن میں ایک دفعہ پھر آپ کو خوش آمدید کہیں گے۔ مفتی مولانا محمد اجمل بھٹی صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ آپ کے سوالات اور جوابات کا سلسلہ دوبارہ سے شروع کرتے ہیں۔ سونیا امجد رینالہ خود سے ہمیں لکھتی ہیں کہ ان کی والدہ ہر ماہ 2 روزوں کی منت انہوں نے مانی ہوئی تھی، جبکہ فرض روزوں کا فدیہ جو کہ وہ اب نہیں رکھ سکتی وہ دے دیتی ہیں، لیکن جو روزے وہ نہیں رکھ سکتی، جو 2 روزے انہوں نے منت کے مانے تھے، اس کے بارے میں کیا کہیں گے؟ جی ہاں، اگر منت مانی اور اب پوری کرنی مشکل ہو رہی ہے تو گویا انہوں نے اپنی منت توڑ دی، تو اس توڑنے کا کفارہ یہ ہے کہ 10 مسکینوں کو کھانا کھلائیں، ان کو لباس دے دیں، یا پھر 3 روزے رکھ لیں نفلی۔ ٹھیک۔ آگے عمر صاحب لکھتے ہیں، جی میری والدہ قرآن نہیں پڑھی ہوئی لیکن شوق بہت ہے، پلیز ان کے لیے کوئی وظیفہ یا عمل بتا دیں، مفتی صاحب پر کروڑوں رحمتوں کا نزول ہو۔ اللہ تعالیٰ جی آپ کو اپنی رحمتوں سے نوازے۔ آمین۔ والدہ محترمہ اگر نہیں پڑھی ہوئی تو ان کو ایپ بہت سارے ایپ تو آ گئے ہیں ماشاءاللہ، کوئی ایک ایپ کر دیں موبائل پر، جہاں وہ ایک لفظ کر کے سیکھنا شروع ہوں گی تو ایک نہ ایک دن وہ پورا سیکھ جائیں گی ماشاءاللہ۔ ٹھیک ہے۔ اور جب تک وہ نہیں پڑھی ہوئی تو اس وقت تک سبحان اللہ، الحمدللہ، اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ، لا حول ولا قوت الا باللہ، یہ تسبیحات پڑھتی رہا کریں۔ اور سورہ اخلاص ہم نے بتائی تھی کہ ایک دفعہ پڑھے تو 10 پاروں کا ثواب ہوتا ہے، تو وہ پڑھتی رہا کریں۔ لیکن قرآن کو سیکھنا بھی چاہیے، جس عمر میں بھی ہوں کوشش کریں، اللہ تعالیٰ سے اجر ہی لینا ہے نا، جتنا ہو سکے اتنا ہی صحیح۔ ٹھیک ہے۔ شاہد خان صاحب لکھتے ہیں، امانت میں رکھے ہوئے پیسے کسی ضرورت مند کو ادھار دے سکتے ہیں، جس کی امانت ہو وہ جب مانگے گا اسی ٹائم واپس کر دیں گے۔ ہاں، تو یہ آپ نے اگر یہ ذمہ داری لی ہوئی ہے جی، اور امانت آپ کے پاس پڑی ہے اور آپ سمجھتے ہیں کہ میری جیب میں اتنی استطاعت ہے کہ امانت دار جب امانت مانگے تو دے بھی دیں گے، تو آپ اس کو دے دیں، آپ دے سکتے ہیں، لیکن وہی شرط کہ امانت دار جب آئے تو اس کی امانت اس کو ملنی چاہیے۔ تو پھر آپ گویا کہ اپنی جیب سے قرض دے رہے ہیں کسی کو، کسی کی ضرورت پوری کر رہے ہیں تو کر دیں، کوئی حرج نہیں ہے۔ ٹھیک ہے۔ منیب لکھتے ہیں، السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ تحیۃ الوضو کے نفل فرض نماز کے بعد پڑھ سکتے ہیں؟ وضو جب کیا ہے تو اس وقت پڑھنے ہیں نا۔ جی۔ اب یہ تو نہیں کہ نماز بھی پڑھ لی، فارغ ہو گئے تو اب یاد آ رہے ہیں وضو، نہیں، یہ وضو جب کریں اس وقت اگر پڑھے جا سکیں تو پڑھ لیں۔ جی۔ اور پھر اگر آپ نے فرضوں کے بعد پڑھیں تو وہ عمومی نفل ہیں، جتنے مرضی پڑھتے رہیں۔ تو تحیۃ الوضو کا مطلب ہے کہ آپ نے وضو کیا ہے اور اللہ کا شکر ادا کرنے کے لیے اسی وقت اگر ٹائم ہے تو آپ وضو کے نفل پڑھ لیں۔ ٹھیک ہے۔ آگے پوچھا گیا، مفتی صاحب اور نوید بھائی السلام علیکم۔ وعلیکم السلام جی، آپ سدا خوش رہیں، آمین، جزاک اللہ خیرہ۔ آپ سے سوال ہے کہ اعتکاف کے بارے میں کچھ رہنمائی کر دیں، جزاک اللہ۔ ابھی تو کی ہے جی، تو ابھی تو تھوڑی دیر پہلے بتائیے۔ محمد صدیق صاحب ہمارے ساتھ لائن پہ لاہور سے۔ جی السلام علیکم۔ السلام علیکم جناب۔ وعلیکم السلام۔ محمد صدیق صاحب لاہور سے کال کیا آپ نے، فرمائیے کیا سوال ہے آپ کا؟ نظامی صاحب طبیعت ٹھیک ہے آپ کی سر؟ جی الحمدللہ، دعائیں جی آپ کی۔ بھٹی صاحب کل نہیں آیا سر، کل پروگرام کا مزہ ہی نہیں آیا۔ اچھا جی، بھٹی صاحب سن رہے اللہ تعالیٰ آپ کو بخش دیں جی۔ الحمدللہ بھٹی صاحب سے اتنا عشق ہو گیا کہ وہ دیکھے بغیر آپ کو نیند نہیں آتی۔ اللہ اکبر، آپ کو برکت دے جی، اللہ خوش رکھے آپ کو۔ آمین 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 سر، آپ کو بھی تندرستی دے سر اللہ تعالیٰ۔ سر میرا ایک سوال تھا سر، یہ کہتے ہیں کہ جب انسان کو ایک کانٹا بھی چبھ جائے یا ایک بخار کی حالت میں بھی وہ بستر پہ رات گزارتا ہے تو اس کے 1 سال کے گناہ معاف ہو جاتے ہیں، آیا ذرا قرآن حدیث کی روشنی سے ذرا وضاحت کیجیے ذرا۔ یہ جو سال والی بات ہمارے بھائی نے کی ہے یہ تو کچھ اضافی ہے۔ جی۔ البتہ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، ما یصیب المسلم نصب ولا وصب ولا ہم ولا غم حتی الشوکۃ یشاکھا۔ آپ نے فرمایا کوئی بندے کو تھکاوٹ بھی ہوتی ہے نا، مسلمان کو کام کاج کر کے تھک گیا ہے، تھکاوٹ ہوتی ہے، اس کا بھی اجر ہے۔ اگر کوئی پریشانی ذہنی ہو اس کا بھی اجر ہے، کوئی جسمانی کوئی تکلیف آ گئی اس کا بھی اجر ہے، حتیٰ کہ فرمایا جو ایک کانٹا بھی چبھتا ہے تو اللہ اس کے ذریعے بھی انسان کے گناہ معاف کر دیتا ہے۔ تو یہ سال کے نہیں، اللہ پتہ نہیں کتنے معاف کر دیتا ہوگا سارے۔ تو جیسی تکلیف ہو، جتنی زیادہ ہو اور بندہ اس پر صبر کر لے تو مومن کے لیے اجر ہی اجر ہے۔
इंशाअल्लाह ताला। ठीक है बड़ी साहब, बहुत से क्वेश्चंस हम मज़ीद भी शामिल करेंगे, लेकिन एक गुजारिश करनी है आपसे। जी जी। और गुजारिश ये है कि आपकी और मेरी ज़िम्मेदारी बन गई है एक, जिस तरह कुछ दिन पहले एक वाक़या हुआ था कि जिसमें एक बच्चे की गर्दन कट गई और डोर और हाँ जी, इस तरह के मामलात की वजह से एक जानी नुकसान हुआ, पूरा घर उजड़ गया। रिपीटेडली पिछले चंद दिनों में 2 और इंसिडेंट हो गए जो कि सिर्फ अभी रिपोर्ट हुए हैं। एक लाहौर का ही वाक़या है और एक गुजरांवाले का वाक़या। मेरी गुजारिश है कि आप कुछ ऐसा कहिए कि हम लोगों को सीधी राह नज़र आ जाए, जो ये काम कर रहे हैं, जो बाज ही नहीं आ रहे। रिपीटेडली 3 वाक़े पैदर पे हो गए हैं और कई ऐसे वाक़यात होंगे जो शायद रिपोर्ट नहीं हुए। खुदारा 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 ये मत कीजिए। आप वो वीडियोस देखते हैं तो आपका दिल बैठ जाता है, आपकी रूह कांप जाती है। वो बच्चे भी तो किसी के, मैं अब क्या बोलूं, जैसे वो कटे पड़े और इतना ब्लड शेल, और वो क्या हमें बिल्कुल भी समझ नहीं आ रही कि हम ये क्या कर रहे हैं। वो लोग पकड़े भी गए जो पहला इंसिडेंस हुआ, उसके बाद फिर ऐसे 2 वाक़यात हुए हैं। तो क्या हमारी इखलाकी ज़िम्मेदारी है, हम क्या कर रहे हैं? बड़ी साहब प्लीज़। निज़ामी भाई, इस्लामी तालीमात के अंदर वो तासीर है जो दुनिया के किसी कानून में नहीं हो सकती। अगर इस्लामी कवानीन नाफज कर दिए जाएं, और इस्लामी कवानीन में सबसे जो बेहतरीन चीज़ है वो ये है कि मुजरम को सरेआम सज़ा दी जाए। अल्लाह अकबर। आपको निज़ामी भाई मैं एक दिलचस्प और इबरतनाक वाक़या सुनाता हूँ जी। मदीना मुनव्वरा में जब हम 96 में पहली दफ़ा मदीना यूनिवर्सिटी पहुँचे तो एक दिन अचानक 9 बजे यूनिवर्सिटी में छुट्टी का ऐलान कर दिया गया। हमने सीनियर से पूछा कि भाई क्या हुआ है, अचानक छुट्टी क्या? कहने लगे जी आज मस्जिद नबवी के सामने उनका सुप्रीम कोर्ट है, उनकी अदालत है, और सुप्रीम कोर्ट और मस्जिद के दरमियान जो खाली जगह है वहाँ पर हफ्तावार सज़ाएँ नाफिज की जाती हैं। कातिल की गर्दन उड़ाई जाती है, चोर का हाथ काटा जाता है। तो आज काफ़ी अरसे के बाद चंद मुजरमों की गर्दन उड़ाई जाएगी। तो हुकूमत कहती है सबको भेजो, देख लें आके। तो हम भी वो इस शौक़ में कि पहली दफ़ा ज़िंदगी में ये मौका था कि इस्लामी हद नाफज होते हुए देखेंगे। जब वहाँ पहुँचे तो यकीन मानिए ऐसे लग रहा था जैसे हमारा वो लाहौर वाला अतीक स्टेडियम नहीं था, चारों तरफ लोग बैठे हैं और दरमियान में वो मुजरम और पुलिस और जज साहब। तो मैंने देखा 4 से 5 एम्बुलेंसेस भी गूं 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 कर रही हैं। तो मैंने एक सीनियर से पूछा, मैं भाई इसका क्या काम है? कहता है थोड़ी देर सब्र करो, फिर तुम्हें पता चलेगा कि ये किस काम की है। यकीन माने जज साहब आए, उन्होंने केस बताया कि इस बंदे ने फ़लाँ मुसलमान को नाजायज़ कत्ल किया था, जुर्म साबित हो गया, लिहाजा आज अल्लाह के हुक्म के मुताबिक हम इसकी गर्दन उतारने लगे हैं। जैसे जल्लाद ने तलवार मारी और मुजरम का सर वो गया तो मेरे सामने खड़ा 6 फुट का निशान धड़म नीचे। एम्बुलेंस वाले आए, उसको उठाया, एम्बुलेंस में डाला और 5 की 5 एम्बुलेंस चंद मिनटों के अंदर मसरूफ़ हो गई। कहता ये है। यकीन जानिए 5 साल हम मदीना मुनव्वरा रहे, 2 से 3 मरतबा 5 सालों में 2 से 3 मरतबा लोगों को आपस में लड़ते देखा। 2 बंदे लड़ने वाले थे तो 40-50 उनको छुड़ाने वाले थे। ये है तासीर इस्लामी हुदूद की। इतना लोग डरते हैं, इतना खौफ खाते हैं कानून से कि लोग छुड़ाने वाले ज़्यादा हैं और यहाँ क्या है, तमाशा देखने वाले ज़्यादा हैं। 2 लड़ रहे हों तो 50 उनको हिलाशरी देने, मारो मारो मारो, इसको 2 मारो, इसको 4 मारो। तो यही हाल हमारा इन कवानीन का है कि एक कीमती इंसानी जान चली गई, एक ही काफ़ी थी। उसके बाद कानून को इस तरह मुतहर्रिक होना चाहिए था कि कोई डोर, कोई गुड्डी पूरे मुल्क में नज़र ना आती, लेकिन ऐसा नहीं हो सका। अफसोस है कि अल्लाह ताला हमें इनसे इबरत हासिल करने की तौफीक अता फरमाए और हम इंसानी जान की कदर करने वाले बन जाएं। आमीन। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर में एक कीमती जान, छोटी बच्ची थी, वो ज़ख्मी हालत में मिली, शदीद ज़ख्मी। साहबा उठाकर अल्लाह के नबी के पास ले आए तो साहबा कराम उस बच्ची को इशारों से पूछ रहे हैं, बेटी तुझे किसने मारा? नाम ले रहे हैं। होता ना इलाके में कुछ लोग ऐसे होते हैं बुरी शोहरत वाले, उनके नाम ले रहे हैं, बेटा फ़लाँ ने मारा है, फ़लाँ ने मारा है, फ़लाँ ने मारा है। जब एक शख्स का नाम लिया गया तो उसने सारा हिलाया, कन्फर्म हो गया और इसके बाद वो बच्ची फौत हो गई। तो नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उस मुजरम को गिरफ़्तार किया, उसको पूछा क्यों मारा है? कहने लगा बच्ची के गले में हार था और ये देती नहीं थी, मैं छीनने की कोशिश करते करते तो वो एक पत्थर इसके सर में मारा है जिससे वो मर गई है। तो अल्लाह के नबी ने हुक्म दिया कि इसको नीचे लिटाओ और एक बड़ा पत्थर लेकर इसके सर में इसी तरह मारो, और उस खबीस आदमी को उसी तरह मौत के घाट उतार दिया गया।
اس کے بعد کبھی چائلڈ ابیوز کا واقعہ مدینے میں نہیں ہوا ہے کہ کسی بچے کے خلاف کوئی بندہ کو حرکت کرے، سوچا بھی نہیں جا سکتا۔ یہ مثال ہمیں یہاں پہ ثابت کرنے کی، عمل کرنے کی میں کہتا ہوں کہ اگر وہی پہلا جو قتل ہوا تھا ڈور سے، وہ ڈور بنانے والے کو اسی چوک میں لٹکا دیا جاتا، اڑانے والے کو بھی اسی طرح کیا اڑانے والے کو بھی، بیچنے والے کو بھی، تو آج دوسرا واقعہ نہیں ہوتا، تیسرا واقعہ نہیں ہوتا۔ تو ہمارے ہاں المیہ یہ ہے کہ فوٹو سیشن کر دیا جاتا ہے، وہ گرفتار ہو گئے، کیا ہوگا؟ وہ چھوٹ جائیں گے دوسرے تیسرے دن۔ تو اس کے لیے پھر یہ قانون کافی نہیں ہوتے، پھر جرم بڑھتا رہتا ہے، بڑھتا اور یہ مثالیں ہیں، اللہ تعالیٰ ہمارے حال پر رحم فرما دے۔ عمران اقبال صاحب لائن پہ موجود ہیں۔ جی السلام علیکم۔ وعلیکم السلام نوید بھائی، کیا حال ہے؟ جی الحمدللہ، جی الحمدللہ، بہت شکریہ کال کرنے کا۔ جی جی اجمل صاحب کو بھی میرا بہت بہت السلام علیکم۔ جی وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی فرمائیے۔ اچھا نوید بھائی، میں نے نا 3-4 دن پہلے بھی آپ کو کال کی تھی۔ میرا 2 سوال ہیں چھوٹے چھوٹے۔ جی جی ایک تو یہ کہ میں آپ کو بتایا تھا کہ میں پیرالائز ہوں، میں اور میری سسٹر، جی ٹھیک ہے، بڑی سسٹر ہے ماشاء اللہ، اس کی بیٹی بھی ہے۔ تو ہمارے لیے دعا کرا دیجیے گا، اور میری بڑی سسٹر کے لیے، ان کی اولاد نہیں ہے۔ ایک تو یہ ہو گیا۔ ٹھیک ہے۔ دوسرا میرا سوال یہ ہے کہ مجھے نا میں منہ ہاتھ صحیح طرح دھو سکتا ہوں، وضو کرنے میں بڑی پرابلم ہوتی ہے۔ اچھا جی۔ چل پھر نہیں آپ کو بتا نہ سکتا، تو جب وضو کرنے جاتا ہوں تو پاؤں وغیرہ دھونے میں بڑی تکلیف ہوتی ہے۔ اچھا جی جی، منہ ہاتھ دھونے میں، پاؤں دھونے میں تو بہت تکلیف ہوتی ہے، تو اس کا کوئی طریقہ کار، کوئی آسان اور کوئی وظیفہ ہمیں بیماری کے لیے بتا دیجیے۔ اللہ تعالیٰ آپ کے لیے آسانی کرے۔ عمران بھائی، ہم نے اس دن بھی رپلائی کیا تھا، اس دن بھی جواب دیا تھا، تو ابھی دوبارہ اب آپ نے دوبارہ کال کیا تو میں بالکل، وہ اس دن میں نے بیماری کا بتایا تھا، آج میں دعا آپ نے اس دن بھی کی تھی۔ جی۔ میں کہہ رہا ہوں کہ وظیفہ مل جائے، اور وہ دعا آپ کے لیے، دعا روزانہ کریں گے تو کام ہے۔ چلیں، بہت شکریہ۔ ٹھیک ہے ٹھیک ہے جی۔ اللہ تعالیٰ جی ہمارے بھائی کو صحت دے، تندرستی سے نوازے، صحت اور ایمان والی زندگی عطا فرمائے۔ آمین۔ تو وضو کا یہ ہے کہ جتنا آسانی سے ہو سکے پانی لے لیں کسی برتن میں، اور ہاتھ گیلا کر کے منہ پر پھیر لیں، اتنا بھی کافی ہے۔ اسی طرح اگر پاؤں کے لیے نیچے جھکا نہیں جاتا تو شاور کے ذریعے پاؤں کے اوپر پانی ڈال لیں، یا اگر کوئی ہیلپر کو ساتھ پاس موجود ہو تو وہ پاؤں کے اوپر پانی ڈال دیں۔ نہیں ملا جا سکتا تو کوئی بات نہیں، لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها۔ اللہ دیکھ رہا ہے کہ میرے بندے کی قدرت کتنی ہے، طاقت کتنی ہے، کتنی استطاعت ہے، کتنا وہ کوشش کر رہا ہے، تو اللہ قبول فرما لیں گے انشاءاللہ۔ باقی ہماری دعا ہے جی اللہ تعالیٰ آپ بہن بھائیوں کو صحت دے، تندرستی سے نوازے، لا باس طہور انشاءاللہ۔ آپ صبر کر رہے ہیں اور انشاءاللہ اللہ سے ڈھیروں ثواب بھی آپ کو مل رہا ہوگا۔ انما یوفی الصابرون اجرہم بغیر حساب۔ وہ عرش والا مالک کہتا ہے کہ میں صبر کرنے والوں کو بغیر حساب کے اجر دیتا ہوں، تو انشاءاللہ بہت بڑا اجر بھی ان کے لیے ہے، اور ہماری دعا بھی ہے کہ اللہ ان کو صحت اور تندرستی سے نوازے، بہن کو اولاد بھی دے دے اللہ تعالیٰ ان کو بھی نیک صالح بیٹے بیٹیاں عطا فرمائے جی، نیک سیرت اولاد عطا فرمائے۔ کچھ پڑھنے کے لیے بھٹی صاحب، وہ بہن جو ہے وہ تو دعا کرے نا سجدے میں، رب ہب لی من الصالحین۔ اور یہ جو بھائی پریشان ہیں، تو یہ میرا خیال ہے درود شریف پڑھتے رہیں تو دل کو بڑا سکون ملے گا، بڑی راحت ملے گی، ماشاءاللہ۔ اللہ تعالیٰ ساری کمیاں بھی پوری فرما دے گا۔ ٹھیک ہے جی۔ روبینہ صاحبہ پاک پتن سے ہمارے ساتھ لائن پہ موجود ہیں۔ جی السلام علیکم۔ وعلیکم السلام بھائی، مفتی صاحب سے سوال کرنا چاہتی ہوں میں۔ جی فرمائیے۔ میرے ہسبینڈ بہت پریشان ہیں، میں بھی پریشان ہوں بھائی۔ ہم نے اپنی بیٹی کا رشتہ کیا تھا، تو ہماری میری جو نند ہے نا، اس نے کچھ ایشو کریٹ کر کے اپنی والدہ کو، مطلب میری ساس کو اپنے پیچھے لگا لیا، اور وہ کہتی ہے کہ ادھر رشتہ نہیں کرنا، اور رشتہ تھوڑا ہمیں اچھا ملا ہے، تو اس وجہ سے میرے ہسبینڈ پریشان ہے۔ اس کی ماں کہتی ہے کہ ادھر رشتہ نہ دو جی، جدھر مرضی دے دو، ادھر نہ دو، جدھر مرضی دے دو۔ میں بولوں گی نہیں، میں نے حصہ بھی نہیں دینا ہے زمین میں سے، اور میں اس کو دودھ بھی نہیں بخشوں گی، اور یہ سارا سلسلہ ہے۔ اور وہ بہن بھائیوں سے بھی نہیں رابطہ رکھنے دیتی ہیں، دونوں ماں بیٹی۔ تو ابھی اور میرے ہسبینڈ پریشان ہے، اور اس دوران ان کے ابو کی بھی ڈیتھ ہو گئی ہے، انا للہ و انا الیہ اور وہ زیادہ ہی پریشان رہتے ہیں۔ اور مفتی صاحب سے کہہ دیں کہ کوئی رہنمائی دے دیں، بٹ صاحب اور آپ کو سمجھ ان کو کوئی پکڑ، ان کو کوئی اگر آگے پکڑ تو نہیں ہوگی نا کہ ہم نے جو رشتہ کیا۔ وہ کہتے ہیں کہ ادھر سے چلو ہمیں نہیں دے رہے ہیں رشتہ، تو آگے بھی نہیں، ادھر بھی نہ دے، کہیں اور کر دیں۔ اب بار بار بچیوں کے رشتے تو نہیں نہ کرے جاتے۔ اچھا چلیں، اللہ تعالیٰ ثانیہ کرے۔ آپ نے جو سوال پوچھا میں بھٹی صاحب سے گزارش کر دیتا ہوں۔ یہ عجیب و غریب قسم کی ضد ہے کہ آپ رشتہ ادھر نہیں کریں تو ادھر کریں۔ کیا ہے بھٹی صاحب، یہ حق کیا نکلے گا والدین اس کا میں ہے، سے؟ یہ حق والدین کا ہے کہ وہ جہاں اپنی بچیوں کا رشتہ مناسب سمجھیں وہ کر لیں۔ تو یہ خاندانی طور پر پریشرائز کرنا کہ اگر تم نے ادھر رشتہ کیا تو ہمارے رشتے ختم،
تو یہ تو ظلم ہے، یہ قطع رحمی ہے، تو ایسا ظلم نہیں کرنا چاہیے۔ اور یہ جو بہن پریشان ہیں، یہ جہاں بیٹے بیٹیوں کا رشتہ مناسب ہے وہاں کر لیں، جی اور یہ جو مخالفت کرنے والے ہیں آہستہ آہستہ خود بہت ٹھیک ہو جائیں گے، اللہ ان کو ہدایت دے۔ ٹھیک ہے۔ بنت عاشق لکھتی ہیں السلام علیکم۔ وعلیکم السلام، ماشاءاللہ بہت اچھا پروگرام ہے، اللہ پاک بھائی نوید اور مفتی اجمل بھٹی صاحب کو ڈھیروں عزتوں سے نوازے۔ جی آمین، جزاک اللہ۔ کہتی ہیں والدہ کے لیے دعا کر دیجئے، انہوں نے ہر ڈاکٹر سے دوا لے لی ہے مگر آرام نہیں آ رہا، آپ ان کے لیے دعا کر دیجئے۔ جب ڈاکٹری دوائیاں اثر نہیں کرتی تو پھر دعا تو اثر کرتی ہے نا، بے تو شک سحری کے ٹائم پر دعا کریں، اللہ تعالیٰ ان کو صحت دے دے، تندرستی عطا فرما دے، اور ہم بھی دعا کر رہے ہیں کہ اللہ ان پر مہربانی کرے اور اپنی رحمتوں سے نوازے۔ آمین۔ محمد صفیہ صاحبہ ہیں ساہیوال سے، ان کو شامل کرتے ہیں۔ جی السلام علیکم۔ وعلیکم السلام جی، کیا حال ہے جی بھائی؟ جی میری بہن الحمدللہ، فرمائیے۔ جی میں نا میں نے اجمل بھٹی سے سوال کرنا تھا۔ میرے ابو نے نا بچپن میں نا مجھے گفٹ کیا تھا مکان، اچھا جی، تو وہ نا اب شادی ہو گئی، میرے ہسبینڈ اور میرے 2 بچے ہیں، ہم پوری فیملی اس مکان میں رہ رہے ہیں۔ جی تو میں نے نا مفتی صاحب سے پوچھنا تھا کہ کیا یہ مکان میں میرے بچوں کا حصہ بنتا ہے؟ میں اگر اپنے بیٹے کے نام اپنے بیٹے کے مکان گفٹ کر دوں تو میری بیٹی کی حق تلفی تو نہیں ہوتی کہ اپنی بیٹی کو ویسے میں کوئی گفٹ کر دوں، دے دوں نقدی، تو مکان بیٹے کو تو یا بیٹی کو کچھ بھی نہ دوں، بیٹے کو خالی گفٹ کر دوں، تو اس میں میں گناہ گار تو نہیں نہ ہوں گی؟ ٹھیک تو ہے جی۔ ایک درود شریف کا پوچھنا تھا، درود شریف ہمیں پورا درود ابراہیم پورا کرنا ہے، درود شریف کی تسبیح کرنی ہو تو جی ٹھیک بس ہے، یہ بہت شکریہ، بہت شکریہ جی کال کرنے کا۔ 2 کوشچن ہیں جی، ایک تو گھر پہلا تو جو والد صاحب نے ان کو گفٹ کیا ان کی ملکیت ہوگی نا، جی لیکن والد صاحب نے باقی اولاد کو بھی کیا تھا کہ ان کے لیے کوئی کیا تھا، یہ تو انہوں نے بتایا نہیں ہے۔ اچھا تو بہرحال اگر ان کو گفٹ صحیح کیا تھا، باقی اولاد کی رضامندی سے کیا، یا کوئی اور بہن بھائی تھا ہی نہیں تو ان کو کو دے دیا، تو اب یہ ان کی ملکیت ہے۔ جی یہ آگے گفٹ کرنا چاہتی ہیں تو اولاد میں برابری ضروری ہے، سب کو دے اس میں سے حصہ، کہ جتنا جتنا کسی کا بنتا سب کو دے دیں، جی یا پھر دوسروں کی رضامندی سے دے دیں۔ اچھا یہ والدین جو ہے نا، والد بھی اور والدہ بھی ہمیشہ بیٹوں کو ہی گفٹ کیوں کرتے ہیں، بیٹیوں کو کیوں نہیں کرتے؟ جی جیسے ان کے والد صاحب نے ان کو دیا تھا، یہ بیٹی تھی نا، جی اب یہ اپنے بیٹے کو کہہ رہی ہیں، بیٹی کو کیوں نہیں؟ ہو سکتا ہے بیٹی ہوئی نا بیٹی صاحب، ہے نا، وہ کہہ تو رہی ہے 2 بیٹے ہیں وہ کہہ رہی ہیں۔ اچھا 2 بیٹے ہیں، 2 بیٹے ہیں۔ اچھا تو ایک کو دینا چاہ رہی ایک کو ہیں؟ دینا نہیں تو یہ تو پھر لڑائی ہے مستقبل کی، مستقل بنیادوں پر لڑائی ہے کہ ایک کو دیا ایک کو نہیں دیا، دونوں برابر ہیں، آپ کے دونوں بیٹے ہیں، تو آپ ابھی دونوں کو کچھ نہ دیں، آپ زندگی گزاریں جب تک اللہ نے آپ کی زندگی رکھی ہے، صحت اور سلامتی سے گزر جائے، تو اس کے بعد یہ بیٹوں کا ہی ہے، خود ہی بانٹتے رہیں گے، آدھا آدھا ان دونوں کو آ اور جائے اگر گا۔ بیٹا بیٹی ہیں تو پھر وہاں پہ بھی اگر عدل گفٹ ہونا چاہیے۔ کرنا چاہتی ہیں زندگی میں تو پھر برابر برابر ہوگا۔ ٹھیک ہے۔ محمد عمران لکھتے ہیں السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ نظامی بھائی کیا حال ہے؟ جی الحمدللہ۔ میرا سوال ہے کہ مجھے دل کی تکلیف ہے 6 سال سے، اور اتنی حیثیت نہیں ہے کہ فدیہ دے سکوں، میرے لیے کیا حکم ہے؟ جی یہ ہم نے کل پرسوں بتایا تھا۔ ہاں جی، بلکہ کہ مجھے اگر لگتا ہے آپ کے کال بھی آئی پاس تھی مالی مجھے۔ استطاعت نہیں ہے تو پھر اللہ کا حکم، کوئی بات نہیں۔ ٹھیک اگر آپ کے پاس کسی سے کوئی ہیلپ آئے تو آپ پھر اپنا فدیہ دے دیجئے گا۔ ٹھیک ہے۔ صفدر صاحب ہیں جی گوجرا والا سے۔ جی السلام علیکم۔ جی وعلیکم السلام بھائی، کیا حال ہے؟ جی الحمدللہ۔ ٹھیک ہے جی الحمدللہ، جی فرمائیے۔ ہم اور میری وائف آپ کا شو بہت شوق سے دیکھ رہے ہیں جزاک تقریباً، اللہ۔ تو ہاں جی، تو مفتی صاحب سوال یہ ہے کہ بیگم میری جو ہے نا صحیح نہیں رہتی، یعنی کہ صبح بالکل صحیح رہتی ہے، اچھا تو روزے کے بعد جب جو ہے نا اس کا جو سانس ہے وہ اٹھنے لگتا ہے، اور طبیعت خراب، اور خاموشی سے لیٹ جاتی ہے، اور کسی سے بات بھی نہیں کرتی ہے، ہاں اس بے چینی اسی طرح کا جو ہے مسئلہ رہتا ہے زیادہ، تو ہم چاہتے ہیں کہ مفتی صاحب سے کوئی دوسرا بتا دیں۔ اچھا وہ بھی بولی جا رہی ہیں، آپ بھی بولی جا رہے ہیں، آپ یا تو ان سے ہی کال کروا دیتے تاکہ وہ اپنا مسئلہ خود بتا دیتی۔ نہیں چلو میں بول رہا ہوں۔ اچھا جی چلیں، ٹھیک ہے ٹھیک ہے جی، میں بھی پوچھتا ہوں۔ بہت شکریہ۔ اللہ اکبر۔ اگر تو وہ صحت کے اعتبار سے تھوڑے کمزور لگ رہی ہیں جی 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 تو وہ ناغہ کر لیں نا، 2 روزے رکھیں، 3 رکھیں، اور ایک آدھ چھوڑ دے درمیان میں، جی تاکہ صحت تھوڑی سی بحال بھی رہے، اور صبح کو ذرا ہیوی خوراک لیں، اچھی کوئی دہی کھائیں، کوئی لسی وغیرہ پئیں تو ذرا دن اچھا گزر جائے۔ اور اگر بالکل اسی طرح حالت ہے کہ نڈال ہو کے گر جاتی ہیں، برداشت بھی نہیں ہوتا، تو پھر بہتر ہے کہ وہ 1-2 ناغے کر لیں۔ تو بیمار آدمی کو اللہ نے رخصت دی ہوئی ہے، 1-2 ناغے کر کے پھر طبیعت بحال ہو، پھر 2-4 رکھ لیں،
تو جو رہ جائیں گے وہ رمضان کے بعد پورے کر لیں ایک ایک کر کے. جی تو آسانی کے ساتھ جس طرح وہ رکھ سکیں رکھ لیں, اتنا اپنے آپ کو مشقت میں نہ ڈالیں کہ پورا گھر ہی ڈسٹرب ہو جائے. تو وظیفہ کیا ہے؟ قرآن پڑھیں نا, قرآن پڑھیں, تلاوت کریں. رمضان مہینہ ہی تلاوت کا ہے. بہت خوبصورت بات امام بخاری رحمہ اللہ, یہ جو آپ نے کتابیں رکھی ہوئی نا صحیح بخاری رکھی ہوئی ہے, امام بخاری رحمہ اللہ نے 16 سال میں اس کتاب کو لکھا اور پھر پڑھاتے رہے. لاکھوں سٹوڈنٹ جن کو پڑھاتے تھے, لیکن جب رمضان مبارک آ جاتا تو پھر وہ حدیث کا درس چھٹیاں دے دیتے اور قرآن مجید پڑھتے. کتنا پڑھتے؟ ایک حافظ صاحب ہمارے بیان کر رہے تھے کہ وہ 45 دفعہ قرآن مجید رمضان میں مکمل کرتے. ماشاءاللہ, یعنی روزانہ کا 1.5 دفعہ قرآن, ماشاءاللہ. یعنی 30 اور 15 45 پارے روزانہ کے وہ پڑھتے تھے. تو یہ قرآن کا مہینہ ہے, آپ دل لگا کے زیادہ سے زیادہ قرآن پڑھیں. سب وظیفوں کا یہ افضل ترین وظیفہ ہے, اور کوئی وظیفہ ہو نہیں سکتا. اللہ کے کلام کے ساتھ کون مقابلہ کرے گا؟ تو آپ قرآن پڑھیں, جی لگا کے قرآن پڑھیں. اور اگر مستقل کوئی معاملہ ہے ایسا تو ڈاکٹر سے دوائی بھی لینی چاہیے اور سے علاج بھی کرانا چاہیے. ٹھیک ہے. آگے باسط صاحب لکھتے ہیں جی میرا سوال ہے, اگر اچھا انہوں نے لکھا عبد الباسط پیر محل سے ہوں میں. پیر محل راول پنڈی کے پاس علاقہ ہے نا. ہاں جی. لکھتے میرا سوال ہے کہ اگر فرض نماز کی جماعت گزر جائے اور تراویح کی جماعت ہو رہی ہو, ہم اس میں شامل ہو کر فرض نماز پڑھ سکتے ہیں؟ ہم کو جماعت کا ثواب ملے گا؟ جی بالکل ملے گا. آپ تراویح کے ساتھ فرض کی نیت سے شامل ہو جائیں اور اپنی نماز مکمل کر لیں, جائیں امام صاحب 2 پر سلام پھیریں, تو بالکل جماعت کا پورا ثواب انشاءاللہ آپ کو ملے گا. ٹھیک ہے. قاسم حسنین ہمارے ریگولر یہاں پہ ویور ہیں اور ہمیں ریگولر 5-6 کویسچن تھرو کرتے ہیں. وہ دا لائٹر نوٹ کہیں ابھی تھوڑی دیر پہلے 1 گھنٹہ پہلے ان کا ٹیکسٹ ہے, کیونکہ باری ان کی اب آ رہی ہے. تو لکھتے ہیں کہ نوید بھائی 1 کپ ٹیم مجھے بھی پلوا دیں. ماشاءاللہ. ان کو کہیں جی تشریف لائیں, ہاں جی, آپ کو چائے بھی پلائیں گے, ساتھ کھجورے بھی کھلائیں گے انشاءاللہ. ٹھیک ہے جی, آپ آ جائیں جی. بھٹی صاحب کی انویٹیشن آ گئی, لیکن میں آپ کو بتا دوں میں چائے نہیں پیتا جی, وہ کافی پی رہے ہوتے ہیں ہم. تو آپ آئیے, موسٹ ویلکم. یہ کافی پئیں, چائے پئیں, کھجورے بھی ساتھ جی. آج کھجورے بھی دیکھیں کیسا پیکج ملا آپ کو. نہیں جی, اب یہ بھی رپلائی آنا ہے اس کا آپ کو بھٹی صاحب. اچھا, عتیق الرحمان صاحب لکھتے ہیں میرا نام عتیق الرحمان ہے. السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. نوید بھائی اور مفتی صاحب آپ دونوں ہی گریٹ پرسنالٹیز ہیں, اللہ تعالیٰ برکت دے جی ان کو, اللہ خوش رکھے. اللہ خوش کہتے ہیں کہاں سے چن کر لائے ہیں ایسے ہیرے پیغام والے. اللہ اکبر, اللہ المستعان. تھینک یو ویری مچ, بہت شکریہ. اللہ تعالیٰ ڈھیروں برکتیں دے. آمین آمین. یہ آپ کی محبتیں ہیں جی, اور آپ کی محبت کے ہم بہت زیادہ شکر گزار ہیں. عزیر صاحب لکھ رہے ہیں جی, عزیر صاحب بھی جی ریگولر ہمارے لکھنے والے. السلام علیکم, کیا ہم نماز کے آخر میں دعا مانگ سکتے ہیں؟ بتا دیں جی. دعا ہی تو مانگنی ہے, نماز ٹوٹلی ہے ہی دعا. اور پھر سجدوں کے علاوہ جب آپ تشہد میں اتحیات پڑھ لیتے ہیں تو پھر درود شریف پڑھنے کے بعد دعاؤں کا وقت ہے. اور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت ساری دعائیں سکھائی ہیں یہاں پر پڑھنے کے لیے. تو آپ جی کھول کر جتنی دعا مانگ سکتے ہیں اتنی دعا مانگ کے پھر سلام پھیریں. یہ قبولیت کا وقت اور جگہ دونوں ایک جگہ ساتھ کٹھے ہو گئے ہیں. ٹھیک ہے. زینب صاحبہ ہیں اوکاڑا سے جی. السلام علیکم. زینب صاحبہ تھوڑا اونچا بولیے پلیز. میں نے یہ پوچھنا تھا جو سجدے میں تسبیح پڑھی جاتی ہے نا. اچھا جی. ہاں جی, وہ اگر اس سے زیادہ پڑھیا جائیں تو کوئی نماز ہو جاتی یا نہیں, کوئی مسئلہ تو نہیں؟ اللہ اکبر جی, بہت شکریہ جی آپ کے اللہ اکبر. زینب بہن, سجدہ تو نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کرتے تھے, اتنا طویل سجدہ کہ سیدنا انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ ہم سمجھے کہ اللہ کے نبی بھول گئے ہیں, اٹھنا ہی بھول گئے ہیں. اتنا طویل سجدہ. تو آپ سجدے کے اندر اپنے رب سے جی بھر کر باتیں کرتے تھے. تو آپ بھی کوئی تعداد نہیں, کوئی لمٹ نہیں ہے کہ آپ سبحان ربی الاعلیٰ کتنی بار کہنا چاہتے ہیں, یا دوسری تسبیحات جو ہیں کتنی بار کہیں, کوئی گنتی نہیں ہے. فقہاء نے ایک حدیث ہے لیکن کمزور سند کے ساتھ, اس سے کہا ہے کہ کم از کم 3 دفعہ تو کہو نا جی. تو میکسیمم کی تو کوئی لمٹ ہی نہیں ہے. تو حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ میں نے حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمہ اللہ جو خلیفہ راشد شمار ہوتے ہیں, کہتے ہیں میں نے ان کے پیچھے نماز پڑھی تو مجھے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز یاد آ گئی کہ یہ نوجوان ایسی خوبصورت نماز پڑھتا ہے جیسے اللہ کے نبی پڑھایا کرتے تھے صلی اللہ علیہ وسلم. تو وہ کہتے ہیں ہم نے حضرت عمر بن عبدالعزیز کے سجدے اور رکوع کا اندازہ لگایا تو ہمیں محسوس ہوا کہ وہ 10 دفعہ کہتے ہیں سبحان ربی العظیم, اور سجدے میں 10 دفعہ سبحان ربی الاعلیٰ. تو یہ ایک معتدل سا سجدہ ہے.
اور اگر آپ نفل نماز پڑھ رہے ہیں یا خود گھر میں خواتین فرض نماز پڑھ رہی ہیں تو کوئی لمٹ نہیں ہے کہ آپ بے شک آدھا گھنٹہ سجدے میں رہیں اور اللہ سے باتیں کرتے رہیں. آپ کا اور آپ کے رب کا معاملہ ہے, ٹھیک ہے, کوئی لمٹ نہیں ہے. ٹھیک. ماریہ صاحبہ ہیں عارف والا سے. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام. نویر بھائی کیا حال چال ہے؟ جی الحمدللہ میری بہن, بہت شکریہ, فرمائیے. اچھا بھائی, میں نے مفتی صاحب سے بڑا حوصلہ کر کے اور ہمت کر کے ایک سوال پوچھنا ہے. جی جی. کہ میرا نا بیٹا فوت ہوا تھا سال پہلے, 1.25 سال کا. اچھا. تو جہاں اس کی قبر ہے نا قبرستان میں, وہ جگہ انتہائی ریتلی ہے. اتنی ریتلی ہے کہ ہوا چلتی ہے تو وہ ریت اڑنے لگ جاتی ہے ہوا کی وجہ سے, اور کافی یعنی نیچے کو ہو جاتا ہے. اب ہم نے وہ ریت وہاں سے اٹھا کے نا اس کی قبر کی یعنی اوپر سے جی وہاں پھر پکی مٹی ڈلوانی ہے. تو مفتی صاحب سے میں نے یہ پوچھنا ہے کہ کہیں نہ کہیں اسلام میں کوئی گنجائش نکلتی ہے کہ ہم وہاں سلیب اٹھا کے دیکھ سکیں یا نہیں سر؟ جی اچھا جی, شکریہ. یہ جو دنیاوی قبر ہے یہ ایک علامت ہے, اصل قبر تو نیچے ہے. اور جو چھوٹے بچے اللہ کے پاس چلے جاتے ہیں تو وہ اللہ کی رحمت سے انشاءاللہ منور ہوں گے, آپ کو کھول کر دیکھنے کی ضرورت نہیں ہے. آپ یہ دعا کریں کہ یہ بچہ اللہ تعالیٰ آپ کے لیے آخرت میں ذخیرہ بنا دے, یہ بچہ ان میں سے ہو کہ جو ہاتھ پکڑ کر والدین کو جنت میں لے جائیں گے. تو آپ والدین ہیں, ان کی دعا کیا کریں اللہ سے نعم البدل کی کہ اللہ آپ کو اس سے بھی اچھی اولاد, نیک سیرت صالح اولاد عطا فرمائے. اور اس بچے کو جو اللہ نے بہت پہلے لے لیا, تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اللہ پوچھتا ہے اپنے فرشتوں کو کہ جب وہ چھوٹے سے بچے کی روح قبض کرتے ہیں تو اللہ پوچھتا ہے کہ میرے بندے کی دل کا سرور تم لے آئے ہو, تو میرا بندہ کیا کہتا تھا اس موقع پر؟ بڑا مشکل ہے نا, صبر اور حوصلے کا وقت ہے. تو فرشتے رپورٹ کرتے ہیں کہ اللہ تیرا بندہ کہہ رہا تھا الحمدللہ, میرے مالک کا شکر ہے, اس نے نعمت دی تھی اسی نے واپس لے لی ہے. تو جب اس صبر اور حوصلے کا اظہار کرتا ہے تو اللہ کہتا ہے میرے بندے کے لیے جنت میں گھر بنا دو اور اس کا نام رکھ دو بیت الحمد, تعریف کرنے والے بندے کا محل. تو اگر آپ صبر اور حوصلہ کریں گے تو انشاءاللہ جنت میں آپ ka گھر بن جائے گا, اور یہ بچہ آپ کے لیے جنت میں پہنچنے کا ذریعہ بن جائے گا. تو جو قبر ہے اس کو بنانے کا, کچی بنانے کا حکم ہے. اگر ریتلا ہے تو اڑ جانے دے, کوئی بات نہیں. آپ یہ سمجھے کہ یہ بچہ آپ کا اللہ کے پاس چلا گیا ہے, آپ صبر کریں گی تو اللہ آپ کو جنت دے دے گا. تو لہذا اس کو اوپر سے پکا کرنے کی, ماربل لگانے کی, لپائی کرنے کی ضرورت نہیں, اللہ کے نبی نے منع کیا ہے. جی ٹھیک. تو ایسی چیزیں نہ کریں, بلکہ آپ اللہ سے دعا کریں کہ اللہ آپ کا یہ بچہ قبول کر لے اور آپ کے لیے جنت کا ذریعہ بنا دے. آمین. محمد اکرم صاحب ہیں عارف والا سے لائن پہ. جی السلام علیکم. جی السلام علیکم محمد اکرم صاحب. کال کہیں کھو گئی ہے. جی کال واپس آئے گی تو پھر بات کریں گے. شمائلہ عزیز لکھتی ہیں السلام علیکم. وعلیکم السلام. لکھتی ہیں میری شادی کو 18 سال ہو گئے ہیں, ایک بیٹا 13 سال کا, ایک بیٹی 9 سال کی ہے. جب بیٹی کی باری تھی تو ڈاکٹر نے کہا تھا ڈیو ٹو میڈیکل ریزن یہ آپ کا شاید لاسٹ بیبی ہو. اچھا سمیع اللہ عزیز لکھ رہے ہیں, سوری میں نام ٹھیک کر لوں. جب ڈیلیوری روم گئے تو میں ہاسپٹل کی مسجد چلا گیا اور اللہ سے رو کے بیٹی مانگی. اللہ نے اپنا فضل کر دیا. اگر میرے پاس آپشن ہوتی تو آپ سے بیٹی کی دعا کرواتا تاکہ 2 کی پرورش کر کے جنت کا حقدار بنتا. کیا کوئی ضعیف حدیث بھی نہیں جس میں ایک بیٹی پہ جنت کی خوشخبری ہو؟ سبحان اللہ, کیوں نہیں, صحیح حدیث میں ہے, ضعیف میں کیوں ہے؟ اللہ اکبر, اللہ اکبر. تو آپ کی جو خواہش ہے کہ اگر اللہ مجھے 2 بیٹیاں دیتا اور میں پال کے اللہ سے جنت لے لیتا, تو اللہ کے نبی کہتے ہیں انما الاعمال بالنیات, نیت کرنے سے بھی آپ کی اللہ نیت دیکھ رہا ہے, دل کا خلوص بھی دیکھ رہا ہے. تو انشاءاللہ آپ کو اجر پورا ہی مل جانا ہے. تو جو بچے اللہ نے آپ کو 2 دیے ہیں ان کی نیک پرورش کریں, ان کی نیک تربیت کریں, اپنے لیے ان کو ذخیرہ آخرت بنانے کی کوشش کریں, تو انشاءاللہ یہ ایک بھی 2 کے قائم مقام ہوگی, کیونکہ آپ کی نیت پوری ہے. تو آپ ان کو نیک صالح تربیت اور پرورش کر کے دنیا میں اپنے لیے بعد میں دعائیں کرنے والا چھوڑ جائیں تو انشاءاللہ آپ کے لیے خیر ہی خیر ہے انشاءاللہ. اجمل بھٹی صاحب اور نظامی صاحب, اللہ آپ کو صحت اور ایمان والی عافیت والی زندگی دے. آمین. جزاکم اللہ. یہ وہی بھائی ہیں بائک والا, جزاکم آئی ڈی اللہ جو خیر. کل ہمیں میسیجز بھیجے تھے. بہت شکریہ جی. رخسانہ صاحبہ گوجہ والا سے ہمارے ساتھ لائن پہ. جی السلام علیکم. جی السلام علیکم.
अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम जी। रुखसाना साहब आपने कॉल की, फरमाइए क्या सवाल है आपका? अस्सलाम वालेकुम निजामी भाई और भट्टी मुफ्ती भट्टी साहब को भी मेरा अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। जी मैंने भट्टी साहब से बात करनी थी। मैं आपका पैगाम बहुत शौक से देखती हूँ और मेरे दिल को बहुत सुकून मिलता है जब आपकी बातें सुनती हूँ। रूहानी मसला इलाज आप बताते हैं, मुझे दिल को बहुत ही सुकून आता है। और मेरी बेचैनी है और मेरी कैफियत है, मैं आपको बता नहीं सकती। आप बराए मेहरबानी मेरे लिए मेरे हक में दुआ कर दीजिए। इंशाल्लाह जरूर करेंगे। मुझे वसवसाए आते हैं, खौफ आता है, डर लगता है। मगरिब के बाद मेरी तबीयत और खराब हो जाती है। अच्छा, क्यों आपको डर लगता है? मेरी सांस ऐसे होता है जैसे मेरी सांस नहीं निकल रही और लंबा सांस लेती हूँ, मुझे पता नहीं अजीब सी कैफियत महसूस होती है। मुझे पता नहीं, मेरी ये जो दांत है ना, ये मेरे ऊपर वाले और नीचे वाले दांत भी आपस में ऐसे महसूस होते हैं जैसे हिल रहे हैं। महसूस ऐसे होते हैं जैसे मेरे दांत आपस में ना हिलते हैं और मेरी सांस लेने में मुझे मुश्किल होती है। बराए मेहरबानी करके आप भट्टी साहब से मेरी रहनुमाई फरमा दीजिए और मेरे हक में दुआ करवा दीजिए। इंशाल्लाह अल्लाह पाक आपको तंदुरुस्ती सेहत दे। निजामी भाई आपको भी, मुफ्ती साहब आपको भी अल्लाह पाक आपकी रहनुमाई करे। मेरे हक में भी दुआ कीजिए जी। इंशाल्लाह मेरे दिल को सुकून आ जाए, इंशाल्लाह मुझे करार आ जाए इंशाल्लाह। मैं रोज आपसे बात करना चाह रही थी, शुक्र अल्लाह पाक का आज कॉल मिल गई है, मुझे बहुत सुकून मिल रहा है आप कॉल मिलकर। अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा चलें, परेशान ना हो, मैं अभी जवाब देता हूँ। बल्कि भट्टी साहब से कहता हूँ कि आपके लिए दुआ भी करें। भट्टी साहब, अल्लाह अकबर। अल्लाह ताला हमारी इस बहन को सुकून, सलामती, ईमान वाली ज़िंदगी दे। अल्लाह ताला इनकी परेशानियाँ दूर फरमाए। ये 2-3 चीज़ें इनको बताते हैं, ये उस पर अमल करना शुरू कर दें। एक तो शाम होते ही बिस्मिल्लाहिल्लज़ी ला यज़ुर्रु मअस्मिही शैउन फिल अर्दि वला फिस समाई व हुवस समीउल अलीम। ये दुआ 3 दफ़ा पढ़नी है। एक दुआ पढ़नी अऊज़ु बिकलिमातिल्लाहि ताम्माति मिन शर्रि मा खलक़। नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद है कि जो बंदा 3 दफ़ा ये दुआ पढ़ ले जी और किसी भी जगह वो क़याम कर रहा है तो वहाँ से कूच करने तक दुनिया की कोई चीज़ उसको नुकसान नहीं पहुँचा सकती। एक साहबी ने कहा, अल्लाह के रसूल मैं रात को नमाज़ पढ़ रहा था तो एक बिच्छू मुझे बार बार डंग मार रहा था, तो ये नमाजी को भी नहीं छोड़ता। तो आपने फरमाया अगर तुमने ये दुआ पढ़ी होती अऊज़ु बिकलिमातिल्लाहि ताम्माति मिन शर्रि मा खलक़, माना क्या है कि अल्लाह मैं तेरे कामिल कलिमात की पनाह में आता हूँ। अल्लाह जितनी मखलूक तू पैदा की हुई है अल्लाह सब के शर से मैं तेरी पनाह में आता हूँ, तो कोई चीज़ मजाल करीब भी आ जाए। तो ये दुआ 3-3 दफ़ा ये शाम होते हुए और पढ़ें और सुबह होते हुए फिर दोबारा पढ़ें। इसके अलावा ये तीनों कुल और आयतुल कुर्सी पढ़कर अपने जिस्म पर खुद ही दम करें। कैसे दम करना है? दोनों हाथ करके पढ़ के फूंक मारें और सर से लेकर पाँव तक मल लें। इंशाअल्लाह ये बहुत बेहतर हो जाएंगे इंशाअल्लाह। और साथ जो दुनियावी असबाब हैं, मेडिकल इलाज भी करवाएं, चेकअप भी करवाएं, अगर कोई प्रॉब्लम है तो उसको हल कराना चाहिए। ठीक है जी। यहाँ पे एक छोटा सा वक्फा है, उसके बाद दोबारा हाजिर होंगे, हमारे साथ रहिएगा। रमजान 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 मग़फ़िरत का हो गया सामान फिर, रब का आया खास एक मेहमान फिर। रमजान 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 मग़फ़िरत का हो गया सामान फिर, रब का आया खास एक मेहमान फिर। ट्रांसमिशन में एक मरतबा फिर आपके साथ हैं, कुछ मज़ीद सवालात शामिल करते हुए। यहाँ पे अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। जी बिल्कुल अल्हम्दुलिल्लाह। मैं अकमल बोल रहा हूँ। अकमल साहब आप बोल नहीं रहे, आप लिख रहे हैं उनका मैसेज आया है यहाँ पे। लिखते हैं, मेरा मुफ्ती साहब से एक क्वेश्चन है कि एक मुसलमान के पास जॉब और बिज़नेस में से कोई एक ऑप्शन चूज़ करना हो तो क्या करना चाहिए? जॉब और में बिज़नेस में से कोई एक चूज़ करना हो जी, तो ये हर बंदे के अपने हिसाब से है। अगर वो बिज़नेस कर सकता है तो बिज़नेस जैसी तो बात ही कोई नहीं है। बिल्कुल बिल्कुल। अपना काम होगा, अपनी मेहनत होगी, अपना सोना अपना जागना। और अगर आपके पास कारोबार करने की सलाहियत नहीं,
وقت نہیں، پیسہ نہیں اور آپ کو مجبوراً جاب ہی کرنی پڑے تو وہ بھی کر لینی چاہیے. یہ نہیں کہ آپ فارغ بیٹھیں یا دوسروں پر بوجھ بن جائیں اور اپنی زندگی کو ایسے ہی گھورتے رہیں کہ لو جی ہر وقت غصہ آتا رہے. تو اس سے بہتر ہے کہ جو موجود اپرچونٹی ہو اس کو آپ لے لیں. مثلا کچھ لوگ ایسے بھی کرتے ہیں جی کہ کچھ عرصہ جاب کی، کچھ پیسے جمع کیے اور جب ان کو پتہ چلا کہ میں چھوٹا سا بزنس شروع کر سکتا ہوں تو وہ جاب چھوڑ کے بزنس شروع کر دیتے ہیں. تو کچھ لوگ ایسے بھی ہیں جو کہتے ہیں جی بزنس میں اتنا لاس ہوا کہ اب برداشت سے باہر ہے، لہذا میں جاب کر لیتا ہوں. تو دونوں اپرچونٹی آپ اپنے خود اپنا حساب لگانا ہے کہ میرے لیے کیا بیسٹ ہے. تو جو آپ کو اچھا لگے وہ بسم اللہ کر کے اللہ پر توکل کریں اور شروع کر دیں. ٹھیک ہے. علی صاحب ہمیں ملتان سے کال کر رہے ہیں. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام سر، کیا حال چال ہے؟ الحمدللہ، بہت شکریہ کال کرنے کا. علی صاحب فرمائیے. سر میں آپ لوگوں کا پروگرام، میری والدہ اور ہم بہت شوق سے آپ کا پروگرام دیکھتے ہیں. بس نا آج نمبر نہیں مل رہا تھا تو آج اللہ کر کے نمبر ملا ہے. مفتی صاحب کو میرا سلام پیش کیجیے گا. السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. مفتی صاحب میرا آپ سے سوال یہ ہے کہ ہمارے گھر والوں نے نا شادی کی تھی سسٹر کی کوئی 2-2.5 سال پہلے. اچھا جی سر تو والد صاحب ہیں نہیں، والد صاحب کی ڈیتھ کو 4 سال ہو گئے ہیں. اللہ. تو چاچی وغیرہ نے شادی کی تھی سسٹر کی. تو کچھ وجوہات کی وجہ سے اپنا سسٹر کو گھر آنے نہیں دیتے ہیں چاچی وغیرہ. تو اس کے لیے کیا بیسٹ ہے؟ مجھے آپ ذرا بتائیے کوئی وظیفہ. اچھا جی ٹھیک ہے، بہت شکریہ کال کرنے کا. چچا کے گھر شادی کی تھی اور چچا ملنے نہیں دیتے ان سے. یہ کیا بات ہوئی؟ ہاں جی. چاچو جو ہے یہ تو والد کے مقام ہوتا ہے. تو یہ بچے بھی وہ سمجھے کہ میرے اپنے بچے ہیں. بھتیجے جو ہے بیٹوں کی طرح ہوتے ہیں. اور وہ بچی جو بھتیجی گھر بہو بنا کر لائے ہیں ان کو والدین کے ساتھ نہ ملنے دینا یہ تو ظلم کی انتہا ہے. البتہ اگر وہ بعض دفعہ ایسا ہوتا ہے نا، کہتے ہیں جی بچی ادھر جاتی ہے تو پھر وہاں سے ان کو کچھ سبق دیے جاتے ہیں تو ہمارے حالات خراب ہوتے ہیں، تو مختصر وقت کے لیے ان کو جائیں، ملوا کے لے آئیں. یا ان کو آپ کہیں کہ آ جائیں بھی آپ کی دعوت ہے، آپ آ جائیں مل جائیں. تو وہاں مسکر رہنے کی اجازت اگر وہ نہیں بھی دینا چاہتے تو نہ ملنے کی اجازت نہ دینا یہ غلط ہے. ملنے دیں ان کو، تھوڑے وقت کے لیے ملنے دیں. آخر اس کے بہن بھائی ہیں، والدین ہیں، ملنے دیں ان کو. اور اگر نہیں ملنے دیتے تو یہ ظلم ہوگا اور ظلم تو پھر قیامت والے دن بھگتنا پڑے گا. وہ وظیفہ پوچھ رہے تھے، اس کے لیے بھی کوئی وظیفہ؟ وظیفہ دعا ہے. اللہ دعاؤں سے بہت کچھ بدل دیتا ہے. بے شک وہ بدل. دعا کریں، اللہ تعالیٰ ان کے چچا کا دل نرم کر دے اور ان کو سمجھ دے دے. مصطفیٰ صاحب ہیں گوجرانوالہ سے لائن پہ. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی شکریہ کال کا، فرمائیے. سر یہ پوچھنا چاہ رہا تھا سر اس دفعہ شکرانہ کتنا دیا جا رہا ہے؟ اچھا جی بہت شکریہ کال کرنے کا. ابھی جواب دیتے ہیں سر. کہاں سے؟ گوجرانوالہ سے. اب گوجرانوالہ میں آٹے کی کیا قیمت ہے نہ آپ کو پتہ نہ مجھے پتہ ہے. تو بھائی جان بازار سے آٹا پتہ کر لیں کتنے کا کلو ہے اور 2.5 کلو آٹے کی قیمت نکال کے تو فطرانہ دے دیں. ٹھیک ہے. یہ آٹا ہی خریدیں اور 2.5 کلو کے حساب سے گھر والا صاحب تمام افراد کی طرف سے آٹے کا توڑا لیں اور کسی غریب کو دے دیں. ٹھیک ہے. عدنان حجازی صاحب لکھتے ہیں مفتی صاحب رمضان کے آخری عشرے میں کون سی دعائیں پڑھیں؟ آپ کی بڑی مہربانی ہوگی. دعا تو بھائی جان آپ کو پتہ ہے کہ آپ نے اپنے رب سے کیا لینا ہے. آپ کو گاڑی چاہیے، بنگلہ چاہیے، گھر چاہیے، کیا چاہیے آپ کو، یہ تو آپ کو پتہ ہے. البتہ آخرت کے لیے بخشش کی دعا، جنت کی دعا اور جہنم سے پناہ کی دعا یہ سب سے جامع ترین دعا. ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار. اس دعا کے اندر موجود ہے یہ ساری چیزیں. جی. اور ام المومنین عائشہ رضی اللہ عنہا نے پوچھا تھا کہ اللہ کے نبی اگر لیلۃ القدر مجھے مل جائے تو میں اپنے رب سے کیا مانگوں؟ تو آپ نے فرمایا تم مانگنا اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنی. اللہ تو معاف بھی بڑا کرتا ہے، معافی کو پسند بھی کرتا ہے. بندہ معافی مانگے تو رب بڑا خوش ہوتا ہے کہ میرے بندے نے معافی مانگ لی تو اللہ مجھے معاف کر دے. تو اس کا مطلب ہے بخشش کی دعا آپ کا مین ہدف ہونا چاہیے کہ آخری 10 راتوں میں آپ اپنے رب سے گناہوں کی بخشش لے لیں. لیکن بخشش کے ساتھ ساتھ جو ہے نا وہ ایک دوست نے بڑی اچھی توجہ دلائی. انہوں نے کہا جی بخشش تو نماز سے بھی ہو رہی ہے، روزوں سے بھی ہو رہی ہے، حج سے بھی ہو رہی ہے، عمرے سے بھی ہو رہی ہے، لیکن جو حقوق العباد آپ نے دبائے ہوئے ہیں وہ تو معافی مانگنے سے ہوں گے. وہ تو ادا کرنے سے ہی معاف ہوں گے. تو یہ آپ غور کر لیں گے اگر کسی دوست کا آپ نے حق دینا ہے تو پہلے اس کا حق دے کر اس سے معافی لے لیں اور پھر جو آپ کا اور رب کے درمیان معاملہ ہے اس کے لیے بخشش کی دعائیں کریں. اور آخری عشرے میں سب سے مین آبجیکٹ
जहन्नम से आज़ादी और जन्नत का असूल है। और ये दोनों काम होंगे कब? जब आप गुनाहों की बख्शिश ले लेंगे। ठीक है, बाबर साहब है फैसलाबाद से लाइन पे। जी अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम जी, क्या हाल है सर? जी अल्हम्दुलिल्लाह। बाबर साहब फरमाइए, क्या सवाल है आपका? जी मुफ्ती साहब से मैं सवाल करना था कि मेरे वालिद साहब आपका जो प्रोग्राम है बहुत शौक से देखते हैं माशाल्लाह, और जब से ये रमज़ान स्टार्ट हुआ है तो वो डेली आपका जो है सहरी टाइम भी देखते हैं और ये सारी के बाद भी। तो वो उनका ना आंखों में बहुत तकलीफ रहती है अक्सर, तो वो मुफ्ती साहब से पूछना। लाइन डिस्कनेक्ट हो गई मेरे ख्याल में, वो टाइमर की वजह से। आंखों की तकलीफ में मुब्तला दुआ तो है जी, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सिखाई, अल्लाहुम्मा आफिनी फी समई, अल्लाहुम्मा आफिनी फी बसरी, अल्लाहुम्मा आफिनी फी बदनी, ला इलाहा इल्ला अंत। तो ये दुआ सुबह शाम 3-3 बार पढ़ के अपने आँखों के ऊपर दम कर लें और उसके अलावा किसी आई स्पेशलिस्ट को भी चेक करवाएं। अगर नज़र कमज़ोर है तो कोई चश्मा लगवा दें बुज़ुर्गों को। ठीक है। मोहम्मद अंसर साहब लाइन पे मौजूद हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। जी अस्सलाम वालेकुम। मेरे ख्याल में लाइन थ्रू नहीं हुई उनकी। मोहम्मद अंसर साहब सुन पा रहे हैं आप मुझे? नहीं सुन पा रहे। ठीक है जी, आगे कुछ क्वेश्चंस यहाँ से शामिल करते हैं। फुरकान हफीज़ साहब लिखते हैं कि अस्सलाम वालेकुम बोथ ऑफ यू। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाह। लिखते हैं कि सदका क्या है, इसकी डेफिनेशन क्या है, सदका के मसारिफ क्या हैं, मस्जिद को दे सकते हैं? आगे सुन लीजिए, ये 3 क्वेश्चन हैं जी। आगे लिखते हैं, मैं एक बिज़नेस करता हूँ जिसमें मेरे साथ इन्वेस्टर्स हैं जिनको मैं मंथली 6% प्रॉफिट देता हूँ उनकी इन्वेस्टमेंट पे। चाहे मुझे जितना भी प्रॉफिट हो या लॉस हो, उनको मैं कंफर्म परसेंटेज देता हूँ। आगे लिखते हैं, क्या ये ठीक है या मैं उनको प्रॉफिट और लॉस दोनों में 50% शेयर दूँ? काइंडली गाइड मी। अब ये 2 क्वेश्चन बन गए जी इनके। सदका अल्लाह की राह में पेश करने वाला वो अमल भी है, वो आपका कोई माल भी है, कोई चीज़ भी है जिसको आप अपने रब को राज़ी करने के लिए देते हैं। गोया कि आप अपने दिल के अंदर जो ईमान है कि अल्लाह मैं तुझे मानता हूँ, तो प्रैक्टिकली आप उसका इजहार भी करते हैं कुछ चीज़ दे करके, अल्लाह देख मेरा जो ईमान था ये मैं उसकी तस्दीक के लिए ये चीज़ तेरी राह में पेश कर रहा हूँ। तो वो देंगे किसको? किसी भी गरीब को, किसी मिस्कीन को, किसी ज़रूरतमंद को, किसी बेवा और यतीम को आप देंगे जी। कितनी देनी है? जितनी आप अल्लाह तौफीक दे, जितना आपके अंदर हौसला हो, जितनी पे पकड़ ज़्यादा दे उतना आप अल्लाह की राह में पेश कर दें। और जो दूसरा सवाल है कि फ़िक्स 6% देते हैं तो वो गलत करते हैं। ठीक है, 6% नहीं, आप उसको उनकी इन्वेस्टमेंट के हिसाब से उनको कह दें कि भाईजान मेरा और आपका मसलन 40 और 60 का होगा परसेंटेज। प्रॉफिट हुआ तो 40 तुम्हारा, 60 मेरा। प्रॉफिट नहीं हुआ, मेरी मेहनत गई, तुम्हारा प्रॉफिट गया। बट सब सॉरी मैं बात कर दूँ, या ये भी हो सकता है कि जितनी इन्वेस्टमेंट उनकी है उसके मुताबिक और जितनी इनकी है वही मैं कह रहा हूँ ना कि अपनी इन्वेस्टमेंट के हिसाब से परसेंटेज निकाल लें। ठीक है, लेकिन वो फिर फिक्स इस लिहाज से नहीं कि फ़ायदा हो या ना हो उनको देनी ही देनी, ये तो सूद है। ये सूद की डेफिनेशन में आता है कि एक बंदे ने इन्वेस्टमेंट की है और आप उसको हर महीने फिक्स दें जी, आपको फ़ायदा हो लॉस हो ये आपके ज़िम्मे है, तो इसको सूद कहते हैं। तो अगर आप उनकी परसेंटेज के मुताबिक उनको प्रॉफिट में से देते हैं और बिलफर्द अगर कभी प्रॉफिट नहीं हुआ तो फिर नहीं देते, तो फिर ये जायज़ है, तिजारत है। ठीक है। इमरान गुज्जर साहब लिखते हैं, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। नवीद भाई अल्लाह पाक आपको और मुफ्ती साहब को अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे जी, आमीन। लिखते हैं, मेरे वालिद साहब का इंतकाल जनवरी में हुआ, उनके लिए दुआ फरमा दें। शुक्रिया। मैं लाहौर से हूँ, अभी मेरी कॉल पे बात भी आपसे हुई थी। इमरान इकबाल जी। ठीक है, अल्लाह ताला जी उनकी बख्शिश फरमाए, अल्लाह ताला आपके वालिद को जन्नतुल फिरदौस अता फरमाए और अल्लाह ताला आपको भी अपनी बरकतों से माला माल फरमाए। आमीन आमीन। अच्छा ठीक है, समीउल्लाह अज़ीज़, इनका अभी हमने जवाब दिया, इनके चंद क्वेश्चंस थे कि बेटी के हवाले से। लिख रहे हैं, अल्हम्दुलिल्लाह दिल मुतमईन हो गया। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। लिखते हैं कि अल्लाह पाक आपको जन्नत में ऐसे ही इकट्ठे करे, आमीन आमीन, जज़ाकुमुल्लाह खैर। हमारी कोई बहन है फ़ायज़ा चौधरी के नाम से उनकी आईडी है और मुख्तलिफ टुकड़ों में इन्होंने क्वेश्चन पूछा जो कि हमारे पास सेग्रीगेट होकर आया है। मैं कोशिश करता हूँ इसको कंप्लीट करूँ। लिखती हैं, अस्सलाम वालेकुम नवीद भाई और मुफ्ती साहब। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। सबको बहुत सलाम। मेरा हम आपका प्रोग्राम बहुत शौक से देखते हैं, अल्हम्दुलिल्लाह। मेरा सवाल है, मेरे बाबा की डेथ हो गई है 8 years ago।
उन्होंने शादी की थी, मेरी मामा से सेपरेशन हो गई थी, उन्होंने हमारे नाम हमारा, उन्होंने 2 शादियां की थी, यानी कि 2, ठीक है, घर लगाया था जो हमारा है, लेकिन उनकी दूसरी बीवी उस पर कब्ज़ा करके बैठी है। हमारे पास ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स भी हैं घर के, मेरे बाबा अपनी खुशी से देकर गए थे, हम 2 बहनें हैं, मेरी मामा अकेली हैं बिल्कुल, प्लीज़ कोई वजीफ़ा बता दें, हमारा घर मिल जाए, हम बहुत परेशान हैं, प्लीज़ आंसर दिस क्वेश्चन। और आगे फिर काफ़ी देर के बाद उन्होंने लिखा है, हमारे साथ कोई नहीं है, कोई हमारा केस नहीं लड़ता, प्लीज़ मुफ्ती साहब से कोई वजीफ़ा बता दें कि हमारा घर मिल जाए, ज़ाती हम बहुत परेशान हैं। अल्लाह अकबर। वरासत को बर वक़्त तकसीम ना करना और अदल के साथ तकसीम ना करना, ये देखें कितने मसाइल हैं। जी बिल्कुल बिल्कुल। अगर हम इस्लाम के मुताबिक जिएँ तो हर बंदे को उसका प्रॉपर हिस्सा मिल जाए तो हर कोई पुरसुकून भी रहे और आपस में मोहब्बत भी कायम रहे। जी। अब ये दोनों बीवियों की जो औलाद है, आप बताएं कि ज़िंदगी में कभी इनकी आपस में मोहब्बत हो सकती है? नेवर। हालांकि एक वालिद की औलाद है, कभी इकट्ठे नहीं होंगे, नहीं हो सकती। तो अगर वालिद अपनी ज़िंदगी में ही अदल और इंसाफ के साथ दोनों बीवियों को सही चीज़ें देकर जाता या इस्लामी वसीयत करता कि मेरी वफ़ात के बाद ये चीज़ें हैं, ये प्रॉपर्टी इस्लामी तरीके से तकसीम कर लें, तो दोनों ही खुश रहती। या भट्टी साहब ज़िंदगी में मौका ही ना मिला हो, ये मौका नहीं मिला तो किसी एक को तो फिर ना देते। हाँ जी। अब देखें उन्होंने एक के नाम लगाया तो दूसरी का जोर चढ़ा और उसने कब्जा कर लिया, नफरतें बढ़ी, दुश्मनियाँ बढ़ी, तो फ़ायदा कोई नहीं हुआ। तो अब बहन पूछ रही है जी हमें को वजीफ़ा बताएं। वजीफ़ा क्या है बहन? अगर आपके पास असल डॉक्यूमेंट हैं तो आप किसी भी पंचायत में किसी भी इलाके के अच्छे लोगों को मिलकर, या रहमदिल वकील भी दुनिया में मौजूद हैं, लेकिन बदकिस्मती से हमारा अदलिया का निज़ाम ऐसा है कि एक सिंपल केस कई दहाइयाँ चलता है और उसका फ़ैसला नहीं हो पाता। तो आप अल्लाह से दुआ करें जी, आप अल्लाह से दुआ करें कि अल्लाह मैं बेबस हूँ, हम बेबस हैं, हमारा कोई केस भी नहीं लड़ता, ज़ोर भी नहीं, लेकिन उस मेरे मालिक के सामने तो कोई रुकावट नहीं है ना, कोई आड़ ही नहीं सकता। तो आप फजर के टाइम सजदे में सर रख के अपने रब से मदद मांग लें तो इंशाअल्लाह मदद आएगी और ये सारे मसले हल हो जाएंगे इंशाअल्लाह। ठीक है। हाफिज़ इमरान लिखते हैं, अस्सलाम वालेकुम मुफ्ती साहब। जी वालेकुम अस्सलाम। जनाब मैं सऊदी अरेबिया से हूँ, मेरी आंखों से खून आया, डॉक्टर मुझे ड्रॉप्स दिए, क्या मैं रोज़े की हालत में ड्रॉप डाल सकता हूँ? जी बिल्कुल, अगर उनकी ज़रूरत है तो ड्रॉप डालें और जो गले के अंदर असर महसूस हो उसको बाहर थूक दें। ठीक है। उमर साहब आपने ये कोई 4वीं 5वीं दफ़ा ये क्वेश्चन हमें भेज दिया है कि आपकी वालदा कुरान नहीं पढ़ सकती, तो आपको हम 3 मरतबा पहले भी रिप्लाई दे चुके हैं। अल्लाह तो आप या तो ट्रांसमिशन देखा करें, और अगर आपने सिर्फ क्वेश्चन थ्रो करके चले जाना है और ट्रांसमिशन नहीं देखनी तो फिर क्वेश्चन थ्रो करने का फ़ायदा कोई नहीं है। आगे जो आपका क्वेश्चन है वो शामिल कर लेते हैं। लिखते हैं कि हम 3 भाई हैं और मैरिड हैं और साथ रहते हैं, अम्मी अब्बू भी साथ हैं, तो फितराना हम सब अपना अपना देंगे या अब्बू ही देंगे जैसे पहले देते थे? अगर तो सब लोग इकट्ठे हैं, एक ही किचन है और वालदैन के साथ वो मिल के रह रहे हैं और सारे भाई कमाई लाकर वालदैन को पकड़ाते हैं और घर का इकट्ठा खर्चा चलता है, तो फिर ज़ाहिर है वो मुश्तरका खाते से ही वालिद साहब देंगे जी। और अगर एक ही घर में रहने के बावजूद तीनों का किचन अलहदा है, अखराजात अलहदा हैं, कमाइयाँ अलहदा हैं, तो फिर फितराना भी अपना अपना देंगे जी। और अगर शफकत करते हुए वालिद साहब अपनी जेब से हर साल देते हैं तो वो उनकी मर्ज़ी, अगर वो दे दें तो अल्हम्दुलिल्लाह, वरना अपना अपना दें। ठीक है। मोहम्मद अंसर साहब लाइन पे मौजूद हैं बावलपुर से। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम सर, मेरा मुफ्ती साहब से मैंने पूछना था, मेरा कोई मसला था सर, वो हाल मैंने कहा था कि मैं अगर ये मसला मेरा हल हो गया ना, मैंने 1 माह के रोजे रखने जी, मसला मेरा वो हल हो गया माशाल्लाह। मैं रोजे वो रखूं या उनका कोई कफारा अदा, मैं चाहता हूँ कफारा अदा कर दूं, क्योंकि 1 महीने के रोजे रखने बहुत मुश्किल है, तो इसके लिए मुफ्ती साहब की रहनुमाई चाहिए सर। तो जब आपने मन्नत मानी थी तब आपने नहीं सोचा कि 1 महीने के रोजे बड़े मुश्किल हो जाएंगे? जवान आदमी के लिए 1 महीने के रोजे रखने कोई मुश्किल नहीं। चलें ठीक है, सर बता रहे हैं आप। 1 महीने के रोज़े जवान आदमी के लिए कोई मुश्किल नहीं हैं, तो अल्लाह से जो वादा किया हुआ उसको निभाने की कोशिश करें। सबसे अभी जब सर्दी का मौसम आएगा, ठंडा मौसम, छोटे दिन होंगे, उस वक्त रख लें। और अगर आपने 30 रोज़े ही पूरे करने हैं तो 1-1, 2-2 करके पूरे कर लें, 30 रोज़े पूरे कर दें, लेकिन भागे नहीं। वो देखें कि जो मसला आपका फंसा हुआ था और आपने इतनी बड़ी छलांग लगा के मन्नत मान ली,
अल्लाह ने तुम्हारी ख्वाहिश के मुताबिक वो पूरा कर बड़ी साहब वो काम कितना बड़ा होगा जिसके लिए उन्हें इतनी बड़ी वो तो अब अल्लाह की फरमाबरदारी में पीछे नहीं, बैक स्टेप ना लें, बल्कि आगे बढ़ें। और जब ठंडे दिन आ जाएं, छोटे दिन आ जाएं, तो उस वक्त सोमवार और जुमेरात का रोज़ा भी रखना शुरू करेंगे तो भी आपके 30 रोज़े पूरे हो जाएंगे। बल्कि बनता तो ये है कि 30 की जगह 31 रखें, एक और रखें ताकि अल्लाह ताला शुक्रगुजारी खुश तो हो जाए। ये है, शुक्रगुजारी शुक्रगुजारी तो ये है, बजाय इसके हो कि हमें को बताएं जी उसका कोई फिदिया नहीं, आप रोज़े रखें। जवान आदमी है भाई, और बड्डी साहब के पास तो इस केस में माफी कोई नहीं है। जवान आदमी है ना, याद उनको बूढ़ा है, बीमार है, कमजोर है, जी मैं रख नहीं सकता, आप तो जवान आदमी हो। अब इनका अगला जो आपको कॉल आएगा ना उसमें ये कहेंगे कि मैं मामला ये है मैं रख नहीं सकता कि शायद चले अगर कोई होगा तो फिर राय फरार हो जाए। ठीक है जी, जी, अशफाक साहब कह रहे हैं कि ठीक है, बड़ी बातें आपने कर ली, छोटा सा वक्फा ले लें जी, एक छोटा सा ब्रेक है, उसके बाद दोबारा हाजिर होते हैं। रमजान 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 मग़फ़िरत का हो गया सामान फिर, रब का आया खास एक मेहमान फिर। रमजान 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 मग़फ़िरत का हो गया सामान फिर, रब का आया खास एक मेहमान फिर। ट्रांसमिशन में एक मर्तबा फिर आपके साथ है, एक सवाल और शामिल करते हैं। हसन मरियम लिखती हैं अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। नवीद भाई आपको और अंकल मुफ्ती साहब को स्पेशल सलाम मेरा। लिखती हैं क्वेश्चन है कि कोई फ़िदिया अगर पहले दे दें 1 या 2 महीने पहले, लेकिन नीयत फ़िदिया की हो तो ये कबूल हो जाता है। आगे फिर लिखती हैं कि क्योंकि इकट्ठा फ़िदिया नहीं दे सकते और इकट्ठे पैसे देना मुश्किल होता है। कौन सा फ़िदिया? ये तो अब क्वेश्चन में यही लग रहा है लेकिन फ़िदिया अगर रमज़ान का है हाँ जी, तो रमज़ान शुरू होने पर देना चाहिए ताकि मुनासिब वक़्त पर किसी मुस्तहिक़ की मदद हो जाए जी। और अगर वो रमज़ान का फ़िदिया थोड़ा थोड़ा करके दे रहे हैं, थोड़ा थोड़ा है ये कितना सा जी, 45 किलो है सिर्फ, तो बहरहाल अगर बेहतर और औला तो यही है कि रमज़ान के रोज़ों का अगर फ़िदिया दे रहे हैं तो वो रमज़ान में ही अदा करें। ठीक है। आगे लिखते हैं जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। मेरा नाम हुज़ैफ़ा है, मेरा भाई आउट ऑफ कंट्री है और मेरी अम्मी वीडियो कॉल पर उसे दम करती हैं, तो क्या वो दम हो जाता है और वो वहाँ महफूज रहता है? सुभान अल्लाह, माँ की दुआ जन्नत की बात। अल्लाह अकबर। ये देखें माँ की मोहब्बत है ना जी, वीडियो कॉल पर उनको दम कर रही हैं। तो आजकल तो बहुत सारे हजरात जो हैं वो दम इसी तरह कर रहे हैं, ऑडियो कॉल पर, वीडियो कॉल पर। बहरहाल माँ की दुआएं तो कहीं भी हों पहुँचती है। ठीक है, माँ के दिल की जो दुआ निकलेगी वो इंशाल्लाह असर करेगी। ठीक है। आयशा राजपूत लिखती हैं अस्सलाम वालेकुम भाई और मुफ्ती साहब। जी वालेकुम अस्सलाम। मुफ्ती साहब से पूछिए अगर हम फ़र्ज़ नमाज में रकत भूल जाएं तो हमें क्या करना चाहिए? पहले तो रकत पूरी करनी है जी। अगर आपको नमाज के दौरान या नमाज के फ़ौरन बाद याद आ गया है कि हमने एक रकत कम पढ़ी है तो पहले तो उठकर वो रकत पूरी करें जी। पूरी करने के बाद अत्तहियात पढ़ लें, दुआएं मांग लें और उसके बाद सजदा साफ़ करें और फिर सलाम फेर दें। ठीक है। काशिफ जब्बार लिखते हैं रमज़ान के महीने में सूरत रहमान 125 मरतबा पढ़ने से सारा साल बरकत होती है, इसके बारे में बता दें। ये तो मुझे तो नहीं पता कि ऐसा किसी ने कहा हो, अल्लाह के नबी से तो बहरहाल ऐसी कोई बात साबित नहीं है जी। कुरान पूरा पढ़ें शुरू से लेकर आखिर तक। जैसे अभी हमने कहा कि इमाम बुखारी रहमहुल्लाह रोज़ाना कुरान मजीद मुकम्मल करते थे, तो भाई आप पढ़ें शुरू से लेकर एंड तक पढ़ें, बेशक रोज़ाना 2 दफ़ा पढ़ लें जी, बरकत ही बरकत है। लेकिन किसी एक चीज़ को ख़ास करके, तादाद भी ख़ास करके और फिर उसके साथ आप ये जो एडिशनल फ़ज़ाइल बयान कर रहे हैं, तो ये तो मेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इख्तियार है कि वो बयान करते हैं। अगर कोई और शख्स बयान करेगा तो वो काबिल एतबार तो नहीं होगा। ठीक है। मुफ्ती साहब से सही हदीस की रोशनी में वितर पढ़ने का तरीका पूछ दें। सुबहान अल्लाह। वितर पढ़ने का तरीका ये है कि आपने 3 पढ़ने हैं कि 5? जी, 3 पढ़ने हैं तो 2 तरीके हैं। या तो आप 2 पढ़ कर सलाम फेर दें और फिर 1 रकत पढ़ के वितर की दुआ करके तो फिर उस पर सलाम फेरें आखिरी रकत। या आप 3 इकट्ठे पढ़ना चाहते हैं तो फिर दरमियाना तशहुद नहीं बैठेंगे और आप तीसरी रकत के लिए वैसे ही उठ के तीसरी रकत मुकम्मल करके दुआ करके सजदे करके तशहुद पढ़ के फिर एंड पर सलाम फेरें।
ठीक है। आगे उन्होंने कुछ और क्वेश्चन, अच्छा उमर साहब जिन्होंने वो वालदा के कुरान पढ़ने वाला क्वेश्चन पूछा था, तो उन्हें यहाँ पे हमसे अपॉलॉजीज़ भी अपने किए हैं, ठीक है कोई बात नहीं। लेकिन ये कि ज़िम्मेदारी हो जाती है कि आपने अगर क्वेश्चन भेजा और मैं उसको शामिल कर चुका हूँ और हम रिपीटेडली ऐसे क्वेश्चंस जो कि बार बार आए हैं उनको एड्रेस करने के बाद भी ये सुने कि जी क्वेश्चन नहीं शामिल किया जा रहा, तो फिर आप काइंडली देखिए, थोड़ी गैर जिम्मेदारी की बात है आपकी तरफ से। एनीवे कोई बात नहीं, आप मज़ीद कोई क्वेश्चन है ज़रूर पूछिए। आगे पूछा गया है और मुफ्ती साहब से ये भी पूछ दें कि शर्ट या कमीज़ के बाजू फोल्ड करके नमाज पढ़ना ठीक है? जी नहीं ठीक है। अल्लाह के नबी ने मना किया है कि नमाज के दौरान बालों को और कपड़ों को नहीं समेटना। यानी आप नमाज पढ़ रहे हैं, अब तो माशाल्लाह कालीन हैं, मार्बल लगे हुए हैं, खूबसूरत जाए नमाज हैं। ये उस दौर की बात हो रही है जब मस्जिद नबवी का फ़र्श भी बजरी का था, बरीक बरीक कंकरियाँ बिछाई गई थी, मोटे पत्थर साइड पर किए गए थे। अब कोई शख्स अपने बाजू फोल्ड कर ले कि मेरे बाजू नीचे लगेंगे तो ये हिस्सा गंदा हो जाएगा, मना कर दिया कि नहीं, ये तकल्लुफ़ नहीं करना, सादगी है। अपने रब के सामने अपने आप को फ़कीर बनाकर पेश करना है। लगते हैं कपड़े तो लग जाएं, माथे पर मिट्टी लग रही है तो लग जाए, और इसी तरह अगर बाल सर के लंबे हैं और वो ज़मीन पर लगते हैं, उनको गर्द लग जाती है तो कोई बात नहीं, अपने रब के सामने फ़कीर ही तो बन रहे हैं। वो गनी है, वो मालिक है, वो बादशाह है, उसके सामने अपनी आजिज़ी का इजहार करना है। और अब तो वो मसला भी कोई नहीं है, कालीन बिछे हैं, मार्बल लगा हुआ है, मस्जिद साफ़ सुथरी हैं, तो लिहाजा बाजू अगर ये आपने कमीज़ पहनी तो इसको फोल्ड नहीं करना, और अगर बाल हैं तो उनको भी खुला रखें। और मर्द के लिए, औरतों के लिए तो वो कमेंडियाँ बना के अपने पीछे डालेंगी। तो मर्द हजरात ने अगर लंबे बाल रखे हैं तो उनको वो आजकल जो रिवाज है पोनियाँ डाल लेते हैं, क्लिप लगा लेते हैं, तो वो गलत है। बाल भी खुले रखने हैं और बाजू भी फोल्ड नहीं करने हैं। ठीक है। बड़ी साहब एक चीज़ जहन में आती है, जैसे हम मसाजिद में जाते हैं, कारपेट होते हैं, तो कारपेट आपको पता है कि बड़े ऑफनली जल्दी जल्दी नहीं धोए जाते और मुश्किल भी है, ख़ास तौर पे मसाजिद के हवाले से। तो एक जिम्मेदारी हमारी बनती है, हमने वुज़ू किया है तो हम अपने हाथ पाँव चेहरे और वो जगह खुश करके जाएं, खुश करके जाएं। वो आपने बहुत अच्छी तवज्जो दिलाई है। वो जब गीला आपका चेहरा ज़मीन पर लगता है, वो जज़ब होता है, ऊपर से गर्द पड़ती है, तो वो अजीबोगरीब स्मेल भी आती है और कालीन ख़राब भी हो जाता है। तो ये हमारे भाई पहली तो तालीम यही थी ना कि घर से वुज़ू करके आओ। हाँ जी। तो मस्जिदों में एहतमाम होने का मतलब ये नहीं कि आप घर से वुज़ू ना करके और इतना बड़ा सवाब आप ज़ाया कर बैठे। घर से वुज़ू करके जाने का फजीलत क्या है कि हर कदम पर आपको गुनाहों की माफ़ी मिल रही है, जन्नत में दर्जा बुलंद हो रहा है, नेकियां मिल रही हैं। तो आप घर से वुज़ू करके चलें ताकि आपका पानी खुश्क हो चुका हो और मस्जिद का क्लीन भी साफ़ रहे। और अगर मस्जिद में किया है तो अपने पास टिशू रखें, रुमाल रखें और उसके साथ साफ़ कर लें। तो मस्जिद की सफाई ये मतलूब है, ये हमारी जिम्मेदारी में शामिल है। बिल्कुल सारा बोझ इंतजामिया पर बिना ना डाल दें कि यार आप ख्याल नहीं करते। भाई हम भी तो उसी मस्जिद के नमाजी हैं, हमें भी तो ख्याल करना चाहिए। और वैसे भी भट्टी साहब अखलाकन भी आपका अखलाकन भी बुरी बात है। आप खुद भी अगर सजदा करते हैं उन कारपेट्स में देखिए, अगर आपको स्मेल आती है और उसी नमी की वजह से आपको पता है इन्फेक्शन भी हो जाते हैं, डिजीजेस भी। और अगर कभी कारी साहब सजदा लंबा कर दे तो दम घुटने लगता है। ओ यस बिल्कुल। पिछले दिनों मेरा एक बड़ा प्यारा दोस्त है, भाइयों की तरह, तो चंद दिन उसकी कॉल नहीं आई। नॉर्मली मुझे डेली कॉल करता है, मैसेजेस करता है, तो नहीं आई। तो थोड़ा सा हुआ कि यार खैरियत हो सी। उसकी जब कॉल है तो कहता मैं 2 दिन हॉस्पिटल रह के आया हूँ। इन्ना लिल्लाह। मैंने पूछा क्या हुआ, तो अब चूंकि मसरूफियत यहाँ पे दिन की और रात की तो पता नहीं चला, वरना मुझे कॉल करना चाहिए था। तो कहते कि यार मैं मस्जिद में बड़ी रूटीन में अल्हम्दुलिल्लाह इबादत के लिए, नमाज के लिए जा रहे हैं, तो मस्जिद के कारपेट में इन्फेक्शन था। अल्लाह अकबर। वो मेरी सांस से अंदर गया जिस्म में, और वो उसने सारा मुझे डिस्टर्ब किया, मुझे सांस लेने में प्रॉब्लम हो गया। तो देखिए हमारी अखलाकी से यही एक सिचुएशन उन भाइयों की है जो जॉगर पहने रखते हैं। जी बिल्कुल। और गर्मियों में भी वो अपनी जुराबें जो हैं सॉक्स तब्दील नहीं करते, और मस्जिद में आते हैं तो सॉक्स उतार के जब पाँव धो के आते हैं बग़ैर साबुन के, तो वो जो स्मेल आती है ना बेताशा बुरी होती है, और वो कई पिछली सफ़ों को भी डिस्टर्ब कर रही होती है। और ख़ास तौर पर जो अगली साहब में हो, अगर ऐसा पाँव लेकर आ जाए जी, और पिछली साहब वाला जो सजदा है वो मुश्किल हो जाता है, बहुत मुश्किल। तो इन सारी चीज़ों का ख्याल करना चाहिए। इसलिए तो हुक्म है कि मस्जिद आओ, तो अल्लाह कहते हैं खुदू ज़ीनतकुम इंद कुल्ले मस्जिद। जब भी मस्जिद में आना नमाज के लिए तो ज़ेब ज़ीनत इख्तियार करो, मिसवाक करके आओ, खुशबू लगा के आओ, साफ़ सुथरे कपड़े पहन के आओ। ना कि आप मस्जिद कैसे आते हो जिस हालत में, यार फटाफट नमाज पढ़ें, चेंज बाद में करेंगे। ओ भाई चेंज अब करो, मस्जिद में जा रहे हो, अल्लाह के सामने पेश हो, अल्लाह के सामने पेश हो रहे हो। यही मेहमानों के लिए हम पूरा तैयार होते हैं, और अल्लाह रब्बुल आलमीन के जब सामने पेश होते हैं तो वो जैसे मैले कुचैले हुए पसीने में डूबे हुए वैसे चले जाए, वो कबूल कर लेता है। लेकिन
हमें हुक्म क्या है कि साफ़ सुथरे होकर ज़ेब ज़ीनत इख्तियार करके नमाज के लिए आओ। ठीक है, ये जिम्मेदारी थी जी एक ये भी ये जिम्मेदारी का एहसास हर उस शख्स को करना चाहिए जो मस्जिद में जाता है। आयशा राजपूत लिखती हैं, अस्सलाम वालेकुम भाई और मुफ्ती साहब। वालेकुम अस्सलाम। औलाद के लिए कोई वजीफ़ा बता दें, मेरी शादी को कुछ साल हो गए हैं, औलाद की नेमत से महरूम हूँ। लास्ट टाइम सवाल पूछा था बट ट्रांसमिशन नहीं देख पाई। असल में वो ये लिखना चाह रही थी, वो स्पेलिंग एरर हो गया, इसलिए रिपीट किया है सवाल। जी मोस्ट वेलकम, कोई बात नहीं। दुआ सबसे बड़ा हथियार है मोमिन का जी। तो दुआ करें रब हबली मिनस्सालिहीन, रब हबली मिनस्सालिहीन। लेकिन दुआ करने से पहले दुरूशी पढ़े ना, दिल खोल कर बस कसरत से पढ़े। अपने रब के करीब जब हो जाएं तो फिर दुआ करें कि अल्लाह मुझे नेक साले औलाद अता कर दे, तो इंशाअल्लाह अल्लाह देगा। लेकिन सब्र और हौसले के साथ, जल्दबाजी नहीं करनी। वो मेरा मालिक खूब जानता है कि किस बंदे को कितना देना है, कब देना है और किस वक्त देना है। तो इसलिए हौसले के साथ मांगते रहें, छोड़ना भी नहीं, मांगते रहें, वो मालिक ज़रूर अता करता है। ठीक है। सलमान हिजाजी साहब लिखते हैं जी, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कोई बंदा बीमारी से रमज़ान के रोज़े ना रख सके, उसके बदले कितने पैसे देने पड़ते हैं? एक बीमारी है आर्जी जी, कि चंद दिन वो बीमार हुआ, उसके बाद रूबस्त हो गया, तो ऐसे रोज़े तो उन्होंने रमज़ान के बाद रखने हैं। रमज़ान के बाद जितने नागे किए थे उतने रोज़े वो रख ले जी। एक बीमार वो है जिसके सेहतमंद होने के चांसेस नहीं, जैसे बूढ़ा बुजुर्ग होता है या कोई दायमी बीमारी में मुब्तला है, तो वो उसका फ़िदिया दे दे 1.5 किलो अनाज के हिसाब से जितने रोज़े छोड़ें। अगर सारे छोड़ने हैं तो 45 किलो होगा 30 दिनों का जी। तो 1.5 किलो के हिसाब से जितने रोज़े भी हों उस महीने उतने दे दे फितरा, ठीक है, कफ़ारा दे दे। सिद्रा आरिफ पूछती हैं कि सवाल का जवाब ज़रूर दें, वो हमारी बहन हमने दे दिया, और अगर कोई और क्वेश्चन है तो लिख भेजिए, हम वो शामिल करेंगे। एम खान लिखते हैं, पेशावर भिखारियों को पैसे देना कैसा है? मेरी मोबाइल शॉप है, सारा दिन पेशावर भिखारी आते हैं, तो मैं उनको हर बार पैसे यानी तो हमें उनको हर बार पैसे देने चाहिए या नहीं? अगर उन्हें नहीं देते हम पैसे तो वो बुरा भला कहते हैं, तब अल्लाह से भी खौफ आता है। कैसे गुस्से वाले भिखारी हैं कि अगर पैसे नहीं दिए तो डांट के जाते देते हैं, गालियाँ। अल्लाह मुस्तआन। रिंग रोड के हमारा ये जो रिंग रोड है, यहाँ से जब मैं रात को जा रहा था तो 1 साल पहले की बात है, तो एक बूढ़े आदमी थे, उन्होंने अपनी मोटरसाइकिल साइड पे खड़ी की, हेलमेट अभी हाथ में है, अच्छा, और वो सारी गाड़ियों वालों से बारी बारी मांग रहे हैं, और जो नहीं देता कुछ उसको गालियां देते हैं, गंदी गालियां। मैंने कहा यार ये अजीब किस्म की गुंडागर्दी है, बदमाशी वाले पैसे मांगने। तो मेरे भाई परेशान नहीं होना, अगर ऐसे लोगों की बात दुआएं लगने लग जाएं तो फिर तो अब तक हम फारग हो चुके हैं। अल्लाह अकबर, अल्लाह। तो आप अल्लाह की राह में जो देना है उसके लिए कोई प्रॉपर शख्स ढूंढे और उसको दे। और ये जो पेशावर हैं निज़ामी भाई, अल्लाह ताला रहम फरमा दे, ये इतने अमीर हैं कि हम भी इतने अमीर नहीं हैं। सर वो आपने क्लिप्स नहीं देखे, नई करोला झुग्गियों के अंदर जाके लग रही है, सुभान अल्लाह। और वो मैं आपको और बहुत से क्लिप्स आज से 10 साल पहले की बात सुनाता हूँ जी। मैंने एक छोटा सा बिजनेस शुरू किया था, तो मेरे बुजुर्ग कहने लगे कि यार ये जो सुबह सुबह मांगने आते ना, किसी को वापस ना भेजा करो। उस वक्त 5 रुपये का नोट होता था, तो उन्होंने मुझे कहा बैंक से पूरी गड्डी मंगवा लो, जो भी आए उसको दे दो, किसी को भी नहीं छोड़ो। मैंने कहा ठीक है, मैं देता रहा। एक अम्मा सुबह सुबह आ जाती थी, सुबह 9 बजे दुकान खोली तो 9:15 साढ़े 9 वो आ जाती थी। एक दिन मैंने बैठा लिया, मैंने कहा अम्मा जी आए बैठे पानी शानी पिए। मैंने कहा अम्मा जी कितने बेटे हैं? कहती 3 बेटे। तो मैंने कहा क्या बात, आपका खर्चा पूरा नहीं करती? कहते नहीं बेटा, वो अपने अपने घर वाले हैं, वो अपना कमाते हैं, मैं अपना कमाती हूँ। वो अपना कमाते, मैं अपना कमाती हूँ। मैंने कहा अम्मा जी आप कहाँ से तशरीफ लाई? कहती मुरीद के थे। मुरीद के से लाहौर आती हैं वो हर रोज़, और 2010-11 में एक आम मजदूर 150, 200, 300 रुपये कमा लेता ना, वो शुक्र करता था। मंदे थे बड़े मार्केट में, और कई दफ़ा मैं मार्केट के जो वो मुलाजम थे ना हमारे, उनको रात को खाने के पैसे दे के जाता था, यार आज तो सारा दिन कोई काम ही नहीं हुआ, तो चलो ये पैसे ले लो, खाना शाना तो खा लो। और वो अम्मा से मैंने पूछा अम्मा कितने हो जाते हैं सुबह से शाम तक आपके? असर के टाइम अम्मा चली जाती वापस, तो अम्मा कहती है बड़े अफसोस करते, बेटा कुछ भी नहीं, लोग 5-5, 10-10 तो देते हैं जी। तो मैंने कहा अम्मा फिर भी एक दिन में कितने हो जाते हैं? कहती यही 2500-3000 हो जाता है उस वक्त में। 2010-11 की बात है। 2500-3000 लेने वाली अम्मा कहती लोग कुछ भी नहीं देते, और सारा दिन मजदूरी करने वाला 200 से 300 कमाता था। तो इनको हम समझते हैं कि ये बड़े गरीब हैं, बड़े मस्कीन हैं, ये तो बड़े बेचारे मुख्ताज हैं।
تو इनको देने के बजाय अपने माल में से फंड अलहदा रखें और किसी मुस्तहिक को ढूंढ कर दें जो वाकई बेचारा मिस्कीन हो और वो शर्मिंदगी से मांग भी नहीं रहा और ये जो हर रोज़ बगैर बिजनेस बनाया हो। शदीद सर्दी में निज़ामी भाई जब धुंधें पड़ रही थी ना तो हाँ यहाँ दफ्तर हम लेट पहुँचते थे, ये धुंध बड़ी थी जी। सुबह फजर के बाद लोग चौकों में खड़े होते हैं, उनको सर्दी नहीं लगती, उनको मौसमी हालात मुतासर नहीं करते, तो लोग पहुँचे होते हैं। तो अभी हम जब यहाँ ट्रांसमिशन खत्म करके जाते हैं तो क्या ख्याल है, चौकों में ये बिजनेस खत्म हो चुका है? नहीं, सिग्नल्स पे हमें मिल कभी खड़े होते हैं, अभी रात को 12 साढ़े 12 बजे में मिलते हैं। तो इसलिए इन पेशावर भिखारियों को देने से इज्तनाब करना चाहिए, बल्कि अपनी अमानत जो है, अपना सदका खैरात किसी मुस्तहिक के घर तक पहुँचाएँ। अपने महल्ले में देखें, अपने ज़िदोकारम में देखें, वो ज़्यादा मुस्तहिक है, इनसे कहीं ज़्यादा मुस्तहिक है। अभी तो बेताशा वीडियो आ रही हैं, वो इतने इतने थैले उन्होंने पैसों के भरे हुए हैं और वो गिनने में भी मुश्किल हो रही है उनको। तो इनको ना दें, खुदारा इनको ना दें, ठीक, और उनको दें जो बेचारे वाकई मुस्तहिक हैं और मांगते हुए भी डरते हैं कि पता नहीं आगे से क्या जवाब मिलेगा जी। ऐसे ही तो उन तक पहुँचाएँ। ठीक। कासिम हसनैन फिर से आ गए हैं जी एक और क्वेश्चन लेके, माशाल्लाह बड़ी लंबी क्यों होती है इनके क्वेश्चंस की जी। लिखते हैं कि मुफ्ती साहब क्या हम इशराक की नमाज घर आकर पढ़ सकते हैं, क्योंकि मस्जिद इंतज़ामिया नमाज के बाद मस्जिद क्लोज़ कर देती है और इशराक का वक्त कब तक होता है? अब ये देख लें एक इस्लामी मुल्क में मस्जिदों का बंद होना कितना बड़ा अलमिया है जी, कि आपकी फजूलियात जो हैं वो रात गहर तक जारी रहती हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, और मस्जिद को 10 से 15 मिनट के बाद बंद करना पड़ता है। तो मस्जिद अमियम को अल्लाह का खौफ करना चाहिए और इशराक पढ़ने देनी चाहिए लोगों को। 1 घंटा होता है, फजर की नमाज के बाद 1 घंटे बाद इशराक का टाइम हो जाता है। तो 1 घंटे के बाद लोगों को इतना बड़ा अजर सवाब लेने दें और लेकर वो घरों को जाएँ, तो इससे बड़ी और सादत मैनेजमेंट भी कोई नहीं कि जितने लोग इशराक पढ़ रहे हैं वो इंतजामिया को भी सवाब हो रहा है ना, जिन्होंने मस्जिद बनाई है, जो चला रहे हैं। तो इसलिए उनको मस्जिद खोल कर रखनी चाहिए। लेकिन अगर ऐसी मजबूरी हो गई है कि मस्जिद वो बंद कर देते हैं तो फिर घर जाकर पढ़े मजबूरन, अल्लाह तो देख ही रहा है, इंशाल्लाह जो सवाब आपको तो मिलेगा। अच्छा ठीक है जी। आगे सना अनवर लिखती हैं, इशा में 4 फ़र्ज़ के बाद 2 सुन्नत और 2 नफल जो बताए जाते हैं, ये क्या उन 8 रकत के अलावा हैं जो हमारे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पढ़ा करते थे तहज्जुद में? जी, जो इशा के बाद 2 सुन्नतें हैं वो तो वो मुअक्कदा हैं जो अल्लाह के नबी हमेशा पढ़ते थे जी, और जो 2 नफल पढ़ते हैं वो आपकी मर्ज़ी है, पढ़ें या ना पढ़ें। उसके बाद जो है वो है तहज्जुद की नमाज, 8 रकत और 3 वितर, वो इनसे अलग से हैं। तो इशा के बाद जो सुनते हैं वो सिर्फ 2 ही हैं। नवाफल आपकी मर्ज़ी है, 2 पढ़ें, 4 पढ़ें या ना पढ़ें। और अगर आपने तरावी या तहज्जुद पढ़नी है तो वो 8 रकत पढ़ के और आखिर में 3 वितर पढ़ लें तो अल्हम्दुलिल्लाह सुन्नत के मुताबिक पूरी हो जाएंगी। और अगर आप 8 से ज़्यादा पढ़ना चाहें तो पढ़ते रहें सारी रात, कोई पाबंदी नहीं है। ठीक है। ऊपर हमने हसन मरियम को जो जवाब दिया था फितराने के हवाले से, फिदिया के हवाले से, तो वो कह रही हैं कि रमज़ान से पहले फिदिया नहीं दे सकते, बट हमने दे दिया, कबूल नहीं हो सकता? अल्लाह कबूल फरमाने वाला जी, हम कौन होते हैं? वो कबूल आपने दे दिया तो अल्लाह कबूल फरमाए। ठीक है। मुफ्ती साहब मुझे इबहाम है जुम्मे की टोटल रकात में, काइंडली बता दें टोटल कितनी रकात हैं 2 फ़र्ज़ से पहले और 2 फ़र्ज़ के बाद? जी हाँ, फ़र्ज़ से पहले 2 नहीं है जी। आप मस्जिद में आ गए हैं और अभी इमाम साहब खुतबे के लिए तशरीफ़ नहीं लाए तो 2-2 रकत करके आप जितनी पढ़ सकते हैं पढ़ लें। और अगर इमाम साहब खुतबा शुरू कर चुके हैं तो फिर आप 2 रकत पढ़ के खुतबा सुनने के लिए बैठ जाएं। और फिर जुमे के बाद 2 रकतें भी अल्लाह के नबी ने पढ़ी हैं, 4 भी पढ़ी हैं। तो ये टोटल जुमे वाले दिन की नमाज है। ठीक है। आगे पूछा गया है, मुफ्ती साहब मस्जिद में तकमील कुरान के बाद तरावी में लोगों की तादाद जमा हो जाती है, क्या तरावी सिर्फ़ कुरान की तकमील तक होता है और रमज़ान के बाद तो मस्जिद खाली हो जाती है? काइंडली इस बारे में बता दें। मस्जिद तो अल्लाह का घर है, इनको आबाद करना फ़र्ज़ है। उनका कहने का मतलब है कि अगर कारी साहब 27 को तरावियाँ मुकम्मल कर दें तो 28 को कोई नहीं आता, 29 को कोई नहीं आता, 30 को कोई नहीं आता। तो ये भाईजान जो महीना हमने अल्लाह की रहमत से तरावियाँ पढ़ी 27, 28, 29 तक जी, तो ये हमारी ट्रेनिंग थी, उसके बाद जारी रहना चाहिए। अगर इमाम साहब बाजमात नहीं पढ़ा रहे तो आप पढ़ लें, मस्जिद में आके पढ़ लें या घर में पढ़ लें, दोनों तरह ही सही है।
घर में पढ़ेंगे तो ये नफल है, ज़्यादा सवाब होगा। ठीक। तो अलबत्ता मस्जिदों को फ़र्द नमाज़ों के साथ आबाद करना हमारी जिम्मेदारी है। फ़र्द नमाज के लिए आपको मस्जिद पहुँचना चाहिए। ठीक है जी, ठीक है। और हम भी एक जगह पहुंच गए अभी, और वो जगह कौन सी है भला? जी जी, वो जगह ब्रेक की। अच्छा ले जी, ब्रेक पे जा रहे हैं, मिलते हैं थोड़ी देर के बाद। रमजान 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 मग़फ़िरत का हो गया सामान फिर, रब का आया खास एक मेहमान फिर। रमजान 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 मग़फ़िरत का हो गया सामान फिर, रब का आया खास एक मेहमान फिर। ट्रांसमिशन में एक दफ़ा फिर आपको खुशामदीद कहेंगे। बढ़ते हैं चंद मज़ीद सवालात की जानिब। भट्ट साहब सवाल शामिल करते हैं। पूछा गया है कि सर वितर में दुआ कहाँ पढ़नी है, रुकू से पहले या बाद में, ये भी पूछ दें। रुकू में दुआ पहले ही है जी, कनूत वितर जिसको हम कहते हैं, तो वो रुकू में जाने से पहले है। और अगर कोई भूल जाए तो रुकू के बाद भी पढ़ी जा सकती है, दुआ है तो बाद में भी पढ़ सकते हैं। ठीक है। आगे पूछा गया है, शहजाद हसन साहब ने पूछा है, क्या इशा के वक्त 4 फ़र्ज़ 2 सुन्नत और 1 वितर मुतवातिर पढ़ सकते हैं? ये जो हमने रूटीन बना लिया ना कि हमने हर रोज़ 1 वितर ही पढ़ना है, तो ये भी महल नज़र है। 3 भी पढ़ने चाहिए, 5 भी पढ़ने चाहिए, तो कोशिश करनी चाहिए कि साथ हम नवाफल भी पढ़ें। तो अगर 1 भी पढ़ लेता है तो नमाज तो हो जाएगी पूरी, लेकिन इसको रूटीन नहीं बनाना चाहिए। ठीक है। आगे पूछा गया, क्या रोज़े का फ़िदिया नमाजी को ही देना शर्त है? शर्त नहीं है जी, औला है। अच्छा। एक बंदा आपका भाई मुसलमान नमाजी भी है, रोज़े भी रख रहा है जी, और एक दूसरा मुसलमान है जो नमाज भी नहीं पढ़ता, रोज़े भी नहीं रखता, दोनों की ज़रूरत है, तो प्रेफरेंस आप नमाजी को दें। अगरचे दूसरे मुसलमान को भी दी जा सकती है कि वो भी गरीब है, मुस्तहिक है, लेकिन जो अल्लाह का इताअत कर रहा है, अल्लाह का फरमाबरदार है, वो बहरहाल उस दूसरे तो अफजल है और औला है। ठीक है। सबा अफजाल लिखती हैं, सर आपका शो बहुत अच्छा है, नॉलेज में इजाफ़ा होता है, अल्लाह आपको जन्नतुल फिरदौस अता फरमाए। आमीन आमीन, जज़ाकल्लाह जी। आगे पूछा गया है कि अस्सलाम वालेकुम भाई। वालेकुम अस्सलाम। मेरी अम्मी अपनी बहन से बहुत मुखलिस हैं, मगर वो हसद करती हैं, तो क्या हम उनसे मिलना छोड़ दें? क्या हुक्म है? नहीं, बल्कि ज़्यादा मिलें। ज़्यादा मिलें। अगर वो हसद करती हैं तो आप ज़्यादा मिलें ताकि उनका हसद मोहब्बत में बदल जाए। ठीक है। तो जो तोड़ रहा हो उससे तो जोड़ने का हुक्म है। सुलेमान हिजाजी साहब लिखते हैं, मेरी खाला बीमार हैं, उनके लिए दुआ की गुजारिश की जा रही है और मेरे नाना के लिए भी। अल्लाह ताला दोनों बुजुर्गों को सेहत और तंदुरुस्ती अता फरमाए, ईमान और सलामती वाली ज़िंदगी अता फरमाए। आमीन आमीन। आगे पूछा गया, भाई अगर कमरे में कारपेट हो और 6 माह का बच्चा पेशाब कर दे और अगर कारपेट धोया ना जा सके और कपड़ा गीला करके उस जगह को अच्छी तरह साफ़ कर दें, तो वहाँ नमाज पढ़ी जा सकती है या नहीं, मुसल्ला बिछा कर? हाँ, अगर गीला कपड़ा करके अच्छी तरह आप उसको साफ़ कर लें जी, और बाद में वो खुश्क भी हो जाए तो फिर साफ़ हो गया ना। तो जब साफ़ हो गया तो फिर उसके ऊपर नमाज भी पढ़ी जा सकती है। ठीक है। अहमदुल्लाह हिजाजी लिखते हैं, अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम अस्सलाम। क्या अकीका 7वें दिन लाजमी है, इसके अलावा नहीं कर सकते? और बच्चे को गंजा करना भी 7वें दिन ही है, और क्या बालों को वज़न करके कोई पैसे देना ज़रूरी है? प्लीज़ कुरान और सुन्नत से रहनुमाई फरमाइए। ये अगर हमारे फेसबुक पेज पर जाएं तो अकीके के मुतल्लिक़ मेरा ख्याल है सबसे ज़्यादा मसाइल अकीके के वहाँ पर रिकॉर्डेड मौजूद हैं, लेकिन इनके लिए हम बता देते हैं कि 7वें दिन अकीका करना अल्लाह के नबी की सुन्नत है और आपका हुक्म भी है। तो 7वें दिन बच्चे के बाल सर के मुंडवाना और उनके वज़न के बराबर चांदी सदका करना ये भी सुन्नत है। 7वें दिन बच्चे का नाम रखना भी सुन्नत है। और अगर 7वें दिन नहीं हो सके, बच्चा मसलन बीमार हो गया था या वालिदैन को कोई मसला है वो नहीं कर सके, तो 14वें दिन कर लें, 14वें दिन नहीं तो 21वें दिन में कर लें। और अगर नहीं कर पाए तो जब अल्लाह तौफीक दे तभी कर लें। उस वक्त तक बच्चा जो है वो गिरवी है। गिरवी का मतलब कि ये बच्चा अपने वालिदैन की कल क़यामत को सिफारिश उस वक्त तक नहीं कर पाएगा जब तक उसका अकीका ना किया जाए। अच्छा। या दूसरा माना है कि ये आफतों, बलाओं, वबाओं के घेरे में रहता है जब तक उसकी तरफ से सदका ना कर दिया जाए अकीके की सूरत में।
تو یہ جب اللہ توفیق دے تبھی کر دیں, اللہ کا شکر ادا کرنے کا ایک بہت بڑا ذریعہ ہے. اچھا, اس کو ادا کر دیں, جب اللہ توفیق دے تبھی کر دیں. ٹھیک ہے. بصورت دیگر اگر اس کو پتہ ہے کہ میرا عقیقہ نہیں ہوا, والدین سے پوچھ لے تو اپنا عقیقہ وہ خود بھی کر سکتا ہے, خود کر لے. جی ہاں, اب اگر اللہ نے توفیق دی ہوئی ہے تو یہ اللہ کا شکر ادا کرنے کا طریقہ ہے نا, اللہ کی راہ میں صدقہ ہی ہے, کر دیں. آگے چلیں, اس سے ریلیونٹ کویسچن پہلے پڑھ لیتے ہیں. کیا قربانی اور عقیقہ اکٹھا ہو سکتا ہے ایک ہی جانور سے؟ بہت مرتبہ ہم اس کا بھی جواب دے چکے ہیں, بٹ بھٹی صاحب پھر بھی بتا دیجیے. نہیں, دونوں کو اکٹھا نہیں کرنا چاہیے. عقیقہ الگ سے ہے اور اس کے لیے بکرے ہی ہیں, 2 بکرے, 2 بکریاں, 2 دمبے, 2 مینڈے, تو بیٹا ہو تو 2 یہ چیزیں. اور جو قربانی ہے وہ تو آپ اونٹ میں بھی کر سکتے ہیں, وہ گائے میں بھی کر سکتے ہیں, لیکن عقیقے میں گائے اور اونٹ کرنا سنت نبی سے ثابت نہیں ہے. اچھا بھٹی صاحب, یہ بھی ہو سکتا ہے کہ قربانی کے جانور آپ نے علیحدہ لیے قربانی کے دنوں میں؟ وہ تو مشکل چیز ہوگی نا. ٹھیک ہے. ان کے پوچھنے کا مطلب ہے کہ ایک اونٹ لیا ہے, اس میں 3 حصے قربانی کے ہو گئے اور 2 عقیقے ہو گئے. ایسا نہیں ہو سکتا. میں اس سے علیحدہ ایک اور چیز آپ نے اونٹ لیا قربانی کے لیے اور 2 بکرے لیے بیٹے کے عقیقے لیے, تو وہ کریں, چاہے وہ عید کے دن ہی کیوں نہ ہو, آپ کر سکتے ہیں. ہاں جی, کریں. ٹھیک ہے. دوسرا یہ بھی فرمائیے گا کہ اچھا پوچھا گیا, السلام علیکم مفتی صاحب, شتر مرغ کھانا حلال ہے؟ شتر بھی ہے اور مرغ بھی ہے. شتر کا مطلب اونٹ, جی, اور مرغ کا مطلب مرغ. ہاں جی. تو حلال ہے, جانور ہے اللہ کا, اور حلال چیزیں کھانے والا, کوئی حرام چیز کھاتا بھی نہیں ہے. تو پرندوں میں یہ پرندہ بھی حلال ہے, اگر آپ کھانا چاہیں تو کھائیں. ہم بھی کھا لیں گے کہ اس دن انشاءاللہ کوئی پلان کرتے ہیں انشاءاللہ رمضان مبارک کے بعد. ٹھیک ہے جی. آگے پوچھا گیا ہے کہ اچھا وہ کویشچن اور کچھ جو تھے وہ میرے خیال میں بہت دفعہ ریپیٹ ہو گئے ہیں, تو ان کی جانب بڑھنے سے. اچھا بڑی صاحب, باہر بڑی بارش ہوئی ہے, شدید بارش ہوئی ہے. اللہ. تو ابھی قاری صاحب ابھی ہمارے ساتھ موجود بھی تھے, بتا رہے تھے کہ ان کا علاقہ جو ہے وہاں پہ بارش کے ساتھ کچھ برف باری بھی ہوئی ہے ہلکی پھلکی. اللہ اکبر, اللہ اکبر. اللہ تعالیٰ سے عافیت مانگنی چاہیے. ان دنوں گندم کی فصل تیار ہے اور کسان دعائیں کر رہے ہیں کہ اللہ رحمت کی بارش ہو اور کوئی نقصان نہ ہو جائے. تو ہم بھی دعا کرتے ہیں کہ اللہ تیرے بندوں کی 6 مہینے کی محنت ہے, اللہ اپنی رحمت سے ان کو یہ فصل حاصل کرنے کی توفیق عطا فرما, اور یہ جو بارش ہو تو یہ بارش سب کے لیے نفع بخش بن جائے, نقصان دہ نہ ہو. ٹھیک ٹھیک, آمین انشاءاللہ تعالی. آگے پوچھا گیا ہے کہ جو پہلی صف میں نمازی کرسی پر بیٹھتے ہیں وہ کھڑے ہونے والوں سے آگے ہوتے ہیں, کیا ان کے ساتھ پاؤں ملائیں گے؟ یہ عذر والے ہیں نا, ان کو چاہیے کہ ایک سائڈ پر کھڑے ہوں. بہتر تو یہ ہے کہ یہ کرسی والے احباب صف کے ایک کونے پر بیٹھ جائیں. لیکن اگر وہ مطلب صف شروع ہوئی ہے اور بندے ہی اتنے تھے تو انہوں نے مجبوراً صف کے درمیان میں کرسی رکھی اور بعد میں صف بڑھتی گئی, تو پھر کوئی وہ اپنے عذر کی بنا پر کبھی کھڑا ہوتا ہے, قیام کے اس کو ہے مطلب استطاعت, تو وہ قیام کھڑے ہو کر کرے گا, اور جب وہ سجدے میں جائیں گے وہ سجدہ نہیں کر سکتا زمین پر, تو پھر وہ کرسی پر بیٹھ کر کرے گا. تو یہ عذر کی بنا پر ایسا کر رہا ہے تو ایسی کوئی حرج نہیں, پھر انشاءاللہ صف ٹھیک ہی رہے گی. ٹھیک ہے. اچھا آگے کچھ کویشچن آ رہے ہیں, کچھ جا رہے ہیں, کچھ سمجھ نہیں لگ رہی کہ بہت انسٹنٹلی کچھ چیزیں وائپ آؤٹ بھی ہو رہی ہیں یہاں سے. اچھا آگے پوچھا گیا ہے جی کہ قاسم حسنین لکھ رہے ہیں, السلام علیکم مفتی صاحب. وعلیکم السلام. اللہ آپ کو ہمیشہ مسکراتا رکھے, آپ بہت پیارے لگتے ہیں مسکراتے. اللہ تعالیٰ برکت دے جی ان کو, اللہ خوش و خرم رکھے. آمین آمین. پھر پوچھا گیا اگر بیٹی ہے, ایک بکرا لیا, اس کی قربانی اور وہی عقیقہ ہو سکتا ہے, یہ پوچھنا تھا. ابھی تو بھائی جواب دیا ہے, 2 in 1 نہیں ہو سکتا. ہاں جی, یہ نہیں ہو سکتا. اور اس کے بعد پوچھا جا رہا ہے جی کہ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے رحمت والی بارش کراچی میں بھی ہو, کراچی والوں کا موسم بھی حسین ہو جائے. شیخ صاحب ہمارے لیے بھی دعا کر دیں. اللہ تعالیٰ جی آپ کو بھی اپنی رحمتوں والی بارش عطا فرمائے. آمین آمین. اچھا جی, اس کے بعد پوچھا گیا ہے, السلام علیکم مفتی صاحب, میرے کپڑوں تک لگتے ہیں, کوئی وظیفہ بتا دیں. کیا کپڑوں کو کٹ لگتے ہیں؟ ہاں, اب یہ ٹک لگتے ہیں. اوکے, ٹک لکھا ہے انہوں نے. اچھا جو کپڑوں پہ, اچھا ٹھیک ٹھیک, ٹک لگتے ہیں. یہ جادو کی علامت ہوتی ہے کہ کوئی شریر حاسد آپ پر جادو کر رہا ہے یا جادو کے ذریعے آپ کا کوئی نقصان چاہ رہا ہے, تو کپڑوں کو کٹ لگ جاتے ہیں, کپڑے جل جاتے ہیں. بعض اوقات انسان کے جسم پر کٹ لگ جاتے ہیں, خون نکلتا ہے, بڑا شدید زخمی ہو جاتا ہے. تو اس کے لیے ایک تو یہ صبح شام کے اذکار کی پابندی کریں. جب ہم صبح شام کے اذکار کہتے ہیں تو اس کا مطلب وہ مسنون اذکار ہوتے ہیں جس میں آیت الکرسی ہے,
आखिरी तीनों कुल हैं, और फिर मज़ीद अल्लाह के नबी की बताई हुई दुआएं हैं। तो वो दुआएं सुबह शाम का ये अपना मामूल बना लें, सख्ती से पाबंदी करेंगे, सुबह उठते ही दुआएं पढ़ें, शाम होते ही दुआएं पढ़ें, तो इंशाल्लाह ये इस तरह के असरात से महफूज रहेंगे। और उसके अलावा अगर ये इलाज करवाना चाहें तो जो हमारे यहाँ मुआलज आते हैं उनमें से किसी एक से रब्ता करके इलाज भी करवा लें। ठीक है। आगे मोहम्मद तासीर लिखते हैं, अगर गोल्ड और कैश हो तो उसका मिलाकर सिल्वर का निसाब पूरा करेंगे या गोल्ड प्लस कैश में गोल्ड ही निसाब पूरा करना है? सर बताइए। क्यों अपने आप को उलझन में डालते हैं? जब अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सोने का अलग से निसाब बताया है और वो 7.5 तोले है जी, और चांदी का 52.5 तोले है, तो आप इन दोनों चीज़ों को मिक्स क्यों करते हैं भाई? और जो कैश है, कैश को उलमाए किराम ने चांदी के साथ रिलेट किया है, तो कैश जब चांदी के 52.5 तोले के करीब पहुंच जाए तो फिर उस पर ज़कात है। तो आप इन चीज़ों को मिक्स नहीं करें कि मसलन एक बंदे के पास 4 तोले सोना है, कुछ चांदी है, कुछ कैश है, तो तीनों को जमा करके ज़कात दे। नहीं, ऐसा शरीयत मुकल्लफ नहीं बनाती है। शरीयत कहती है सोना 7.5 तोले होगा तो ज़कात है, कम है तो आप इंजॉय करें, चांदी 52.5 तोले हो गई है तो ठीक है, वरना कम है तो छोड़ दें। और अगर कैश आपके पास 1.38 आजकल के हिसाब से है तो उस पर ज़कात दें, और अगर वो लाख या लाख से कम है तो उस पर भी ज़कात नहीं है। अच्छा, मज़े की बात यह है कि जिनके पास थोड़ा सा है ना, 2 तोले सोना है और उनके पास थोड़ी सी चांदी है और 75-80 हज़ार रुपये कहीं से जमा हो गया उनके पास, तो वो बेचारे परेशान है कि ज़कात कितनी होगी। हाँ जी। और जिनके पास 10 करोड़ बैंक में पड़ा है और सोना भी 2-4 किलो रखा हुआ है, वो डरते पूछते नहीं है कि ज़कात काफ़ी बन गई। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। भाई बड़े की बात नहीं है, वो इस तरफ आना ही नहीं चाहते। अच्छा खासा जो जिनकी मालियत ज़कात की बननी है ना, जी जी, उनसे मैंने पूछा कि आपने कितनी ज़कात दी है, तो वो कहते हैं जी वो तो बिजनेस ही इतना फैला हुआ है, हिसाब किताब रखना बड़ा मुश्किल है, ज़कात कैसे निकालें? मैंने कहा ये तो 1 मिनट का हिसाब है, निकल आएगी, आप देना चाहते हैं तो फिर बताएं। तो असल में वो जो ज़कात जिनकी वाकई एक अमाउंट बनती है ना, वो भागते हैं। अल्लाह ताला उनको समझ दे, हिदायत दे। ज़कात देने से बरकत आती है, बरकत आती है। तो वो बेचारे जो छोटी छोटी ज़मीनों वाले हैं, जिनकी 2 एकड़ ज़मीन, मुझे याद है कि हमारा एक दोस्त 2 एकड़ ज़मीन थी, वो बेचारा फ़ोन कर करके, अभी गंदम आई नहीं है, अभी कटी भी नहीं, और वो पहले से परेशान है कि मेरा उशर कितना बनेगा, मुझे बड़ी साहब बता दें। और मैंने कहा यार गंदम आने तो दो। और वहीं उसी गाँव में जिनकी 200 एकड़ 300 एकड़ 1000 एकड़ ज़मीन है और उशर भी उनका सैकड़ों मन के हिसाब से बनना है, वो पूछते भी नहीं है, वो बताते भी नहीं है। और जब मैंने एक दफ़ा पूछ लिया कि यार इस दफ़ा आपने उशर कितना दिया है, कहता जी बड़े भाई को पता है, वो ही सारा करते हैं हिसाब किताब। मैंने कहा पूछ के बताओ मुझे जी। और मेरे दोस्त भी थे, कज़न भी थे, मैंने कहा पूछ के बताए। तो वो पूछ के कहता है जी 2 मन फलां गरीब को दिया है, गाँव के जो अपने गरीब थे जो घरों में काम करने वाले थे, 2 मन फलां को दिया, 2 मन फलां, टोटल 10-12 मन में उन्होंने अपना उशर पूरा कर दिया। सारी गंदम जैसे कटाई की है सीधी मंडियों में फेंकी है और गरीब आदमियों का हक नहीं दिया है। तो जो थोड़े थोड़े वाले हैं उनको शायद अल्लाह का डर ज़्यादा है, और जिनकी वाकई को अमाउंट बनती है वो गेड़े कराने पर हैं। अल्लाह ताला उनको समझता है। सारे ऐसे नहीं हैं, सारे ऐसे नहीं हैं, बहुत अच्छे लोग भी मौजूद हैं जो हमारे पहले अल्लाह का हक मौजूद हैं, हमारे प्रोग्राम में आते हैं, अल्लाह का हक पहले देते हैं और बाद में बाकी काम करते हैं। बड़ी साहब मैसेज आप भी जानते होंगे, आप भी सोशल सर्कल में बहुत ज़्यादा ऐसे लोगों को रखते होंगे आसपास जिनके पास अल्हम्दुलिल्लाह बहुत कुछ है, लेकिन उनके अब उस तरह से सोर्स ऑफ इनकम नहीं है कि वो ज़कात दे सकें या प्रॉपर तरीके से उनके बिजनेस नहीं रहे, लेकिन वो भी ज़कात निकालते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह देते हैं लोग ज़कात देने अल्लाह ताला ने जज्बे दिए हुए माशाअल्लाह। इस महीने में जितना सदका खैरात हमारी कौम करती है, शायद ही दुनिया में कोई कौम करती है, कहीं मिसाल नहीं मिलती, कहीं मिसाल नहीं, यकीनन। ठीक है सर, आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे लिखा गया है कि अच्छा जी, राना हमाद लिखते हैं अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम नज़ामी भाई, आपका प्रोग्राम बहुत अच्छा है, हम बहुत शौक़ से देखते हैं, अल्लाह आपको खुश रखे, आमीन आमीन जी, बहुत शुक्रिया। ये जी टीम वर्क है डेफिनेटली, और जैसे मैं कहा करता हूँ कि स्क्रीन पे तो हम बैठे हैं लेकिन हमारे पीछे पूरी टीम है जो ये काम करी, और लगता है कि हमारा एसी भी थोड़ा थक गया है, बंद होकर दोबारा चल रहा है। ठीक है, क्योंकि बारिश हो रही है जी, कुछ बिजली के मामला भी डिस्टर्ब हैं, जो लैंडलाइन के मामला ये आप बता दें कि जो कॉल अभी रिसीव नहीं हो रही, तो उसकी वजह ये है कि बारिश की वजह से ब्रेकडाउन है, क्योंकि बारिश बहुत शदीद हुई है लाहौर में और गिरदोनवा में, तो लाइन के ब्रेकडाउन्स की वजह से आपकी लाइन्स थ्रो नहीं हो रही,
वरना हमारी टीम बिल्कुल रेडी है। आपकी जो कॉल्स आ रही हैं और बहुत सी कॉल्स ऐसी भी आ रही हैं कि जो आगे थ्रू नहीं हो पा रही, तो ये टेक्निकल एरर है जी, अदरवाइज़ हम यहाँ पे मौजूद हैं। और बल्कि हम कल मज़ीद भी हो सकता है कि टाइम एक्सटेंड कर दें और ये सिटिंग हमारी और भी हो। आगे जी लिखते ले, ये वही भाई हैं, बाइक वाले भाई लिख रहे हैं कि माशाल्लाह निज़ामी भाई, अल्लाह पाक आप और आपकी टीम को आफियत से नवाजे, इतनी एनर्जी माशाल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह जी, अल्हम्दुलिल्लाह, ये अल्लाह ताला की रहमतें हैं हम पे। और मशीन हमारी यहाँ पे, हमारे बहुत से गैजेट्स जिनके हम बैटरीज चेंज कर रहे हैं, जिनको हम रेस्ट दिलवा रहे हैं, हम दोबारा उनको चार्जिंग पे लगा रहे हैं, लेकिन हमारी चार्जिंग अल्लाह ताला के साथ कनेक्ट है। हमारी टीम की चार्जिंग उनके साथ कनेक्ट है अल्लाह ताला के साथ। अल्हम्दुलिल्लाह जी, थैंक यू वेरी मच हमें प्रेज़ करने के लिए। अल्लाह पाक हम सबको जन्नत में भी इकट्ठा करे और हम वहाँ भी आपका ऐसे ही प्रोग्राम देखा करें। ओह स्वीट ऑफ यू, जज़ाकल्लाह जी, बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। अच्छा, हसनैन अमीन लिख रहे हैं, प्लीज़ मुफ्ती साहब का नंबर ज़रूर दे दें। मुफ्ती साहब बैठे हैं जी, इनसे पूछ लें कि आपको नंबर देना चाह रहे हैं या नहीं। हमें एक रिटर्न क्वेश्चन आया, इतनी देर मैं वो देखता हूँ। आप सर, ओवर टू यू, स्क्रीन आपकी तरफ है, दो जुमले बोल लीजिए। जी मेरे भाई, आप नंबर ये जो पैगाम टीवी वाला है इसको इस्तेमाल करें, जो हुक्म करेंगे हम इंशाल्लाह हाज़िर हैं। लेकिन वो पर्सनल नंबर इतने लोगों को ले चुके हैं कि अब तो मुश्किल हो रही है, फिर वो अटेंड नहीं होता तो फिर भी शिकवा होता है जी, भट्टी साहब फ़ोन नहीं सुनते जी। तो आप यकीन जाने कि चंद मिनट जब सोना होता है ना हमने, तो उस वक्त भी वो मैं साइलेंट करके सोता हूँ, तो जब उठता हूँ तो बेशुमार मिस कॉल हो चुकी होती है। फिर वो नाराज़ होते हैं जी आप फ़ोन नहीं सुनते। मैंने कहा भाई अब मैं भी इंसान, थोड़ा सा सोना भी पड़ता है। मेरा इंजन जेन्युइन है, हाँ जी, लेकिन इसको भी रेस्ट की ज़रूरत है, फिर मुश्किल हो जाती है। ठीक है, ठीक है, ठीक है। आगे क्वेश्चन हमें आया है कि कुरान करीम में आया है कि नेक मर्दों के लिए नेक औरतें और बुरे मर्दों के लिए बुरी औरतें मुंतखब की गई हैं। इसका हुक्म आखिरत के लिए है या दुनिया के लिए है? ये दोनों गलत बात समझे हैं। अच्छा। कुरान मजीद में जहाँ आया ना अल खबीसात लिल खबीसीन जी, कि बुरी औरतें बुरी मर्दों के लिए हैं, उसका मतलब ये नहीं है कि अल्लाह ने मुतय्यन कर दिया नौज़ बिल्लाह कि बुरी औरतें बुरी मर्दों से ही शादी करेंगी, बल्कि वो बयान ये हो रहा है कि आम हालात में जो बद किरदार मर्द होते हैं वो अपने जैसी बद किरदार औरतों को ही पसंद करते हैं जी, या जो बुरे किरदार की औरतें होती हैं उनको अमूमन उसी तरह के आवारा मर्द अच्छे लगते हैं, नेक सीरत उनको अच्छे नहीं लगते। तो ये बात बयान हो रही है। ये कतन नहीं है कि अगर किसी नेक सीरत आदमी की शादी हो जाए और बदकिस्मती से बीवी बद किरदार निकल आए तो वो ऐत पढ़ के सुना देते हैं, देखो अल्लाह ने कहा था कि बद किरदार औरतें बद किरदार मर्दों के लिए होती हैं, लिहाजा तुम्हारा किरदार अमूमी तौर पे यही होता है। ये ताना बना देते हैं। तो ये कतन सही नहीं है, ये गलत है। तो इसमें कहा ये जा रहा है कि बुरे मर्द आम तौर पर बुरी औरतों को लाइक करते हैं और बुरे मर्द बुरी औरतों को लाइक करते हैं, उनको अपना जीवन साथी बनाना पसंद करते हैं। ये कतन मतलब नहीं है कि किसी की बीवी बद किरदार निकला है या बंदा बद किरदार निकला है तो नेक सीरत को भी ताना मिले, लोगों तुम सही नहीं हो इसलिए तुम्हें ये मिला है। नहीं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। अच्छा भट्टी साहब, ये ना आपने बड़ी मुश्किल हल की है लोगों की। मैं चाहता हूँ इस पर थोड़ी सी बात हो, डिबेट हो। मैं बहुत से ऐसे लोगों को जानता हूँ जो नहायत पर्सनली जानता हूँ, नहायत शरीफ लोग हैं, दीनदार हैं, साफ सुथरे, नीट एंड क्लीन, डिसेंट लोग हैं, लेकिन उनको लाइफ पार्टनर ठीक नहीं मिला। तो वो अब आगे से ताना क्या है जी, बिल्कुल, कि तुम अगर सही होते तो ये तुम्हारा लाइफ पार्टनर भी सही होता, तो ये सही नहीं है तो इसका मतलब तुम भी सही नहीं, तुम भी सही नहीं, जबकि ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है। और वो आपने जो उसकी सही जो रूह है उस आयत की वो आपने भी बताई जो हमें समझने की जरूरत है। और वो लोग अक्सर कभी ना बैठ के गिल्ट फील करते थे, वो खुद सोचते हैं कि यार आखिर मेरा क्या कसूर है, मेरा क्या कसूर है। तो जब ऐसी गुफ्तगू होती थी ना तो हमें समझ नहीं लगती थी कि इसको, लेकिन ये क्लिप मैं चाहूंगा कि जब अपलोड करें तो उन लोगों तक पहुंचना चाहिए इंशाअल्लाह। ऐसी खवातीन जो बड़ी पाक दामन है, बड़ी पाक, और ऐसी मिसालें सैकड़ों नहीं हजारों हैं जी, बिल्कुल, कि जहां एक बहुत अच्छी नाइस खातून एक बुरे मर्द के साथ ब्याही गई और हमें कॉल्स भी आई जी जी कि ऐसी खवातीन कई सालों से उस बुरे मर्द को बर्दाश्त कर रही हैं जी। एग्जैक्टली वो उनसे खुला भी नहीं लेती, कहती मैं अल्लाह की रज़ा पर राज़ी हूँ और मैं इस शख्स की खिदमत करती हूँ, कभी तो ये सुधरेगा। वो ड्रिंक भी करता है, वो नशा भी करता है, कमाता भी नहीं, दूसरे बहन भाई उसकी मदद करके उसका घर चला रहे हैं,
लेकिन वो नेक सीरत बीवी सब्र करके बैठी हुई। बड़ी साहब मैं आपको एक एक्सपीरियंस बताऊं, हमारे जानने वालों में इर्द गिर्द बहुत सी मिसालें होती हैं ना, सोसाइटी मिसालों से भरी हुई है जिनसे हम सबक सीख सकें। और ख़ास तौर पर हमारा मुआशरा तो हर किस्म की मिसालों से भरा हुआ। नहायत ही अच्छी फैमिली, दीनदार, पाकबाज, साफ सुथरे, डिसेंट, पढ़े लिखे लोग, उनकी बेटी शरीफ खातून, अच्छी खातून, शौहर ने ठीक मिला। सुभान अल्लाह। कभी कहीं मामला, कभी ये है जेल, किस्मत की आजमाइशें। हाँ जी, कभी जेल, कभी क्रिमिनल एक्टिविटी, कभी मारपीट, कभी तशद्दुद, बच्चों को साइको पेशेंट बना दिया, बच्चों की जिंदगी खराब हो गई। आगे से उनकी नस्ल जो होगी उनका क्या इंप्रेशन होगा। फाइनली उन खातून ने साल 30-35 साल उन्हें काटे उस अजियत में कि नहीं, मैं रब की रज़ा में खुश हूँ कि अगर मेरा साथ ऐसे लिखा है। वो बंदा एक दिन छोड़ के चला गया, इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि। और वो खातून आज भी उसी तरह ज़िंदगी गुजार रही हैं। तो ऐसी 20 मिसालें हैं। हाँ जी, तो वो उनको ये आयत पढ़ के सुना के मज़ीद अज़ियत दी जाती है। भाई ये टोटली गलत, ये गलत था, ये गलत था। और ऐसे कई मर्द मौजूद हैं, बिल्कुल, उनकी भी मिसालें ऐसी हैं कि ख़वातीन उनके साथ ये करके चली गई। तो अल्लाह का शुक्र है कि आज जो आपने चीज़ बताई, अल्लाह ताला इसको कबूल फरमा ले। आमीन आमीन। अल्लाह ताला आपको इसका अजर दे, आप हिस्सा बन गए इसमें, इस रहनुमाई के लिए। ठीक है जी। एम खान साहब लिखते हैं कि भाई आपने मेरा सवाल का जवाब नहीं दिया। भाई कौन से सवाल का जवाब नहीं दिया एम खान साहब? आपके कम से कम 8-10 सवाल तो मैं आज पढ़ चुका हूँ। तो अगर फिर भी आपको लग रहा है कोई रह गया है, और अगर कोई ऐसा था कि जो रिपीटेडली बहुत दफ़ा शामिल कर चुके हैं, तो अब तो आपको ये नहीं कहना चाहिए। और अगर आपको लगता है कोई ऐसा है जो रिपीटेड नहीं था, तो आप लिख भेजिए, हम बैठे हैं अभी, हम उसको शामिल कर लेंगे। अदनान एजाज़ी, हमने आपके दादा के लिए भी दुआ भी करवा दी है, तो आपका मैसेज दोबारा है। आगे पूछा गया है जी कि अस्सलाम वालेकुम, हदीस में लिखा है कि हज़रत आयशा की निकाह की उम्र, आई डोंट नो, ये कंप्लीट नहीं है जी। मेरी टीम इसको एड्रेस कर ले इस क्वेश्चन को। और आगे है जी, मुफ्ती साहब क्या जुम्मा की नमाज के बाद नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से इज्तिमाई दुआ साबित है? अच्छा, असल में हम दुआ के मतलब को नहीं समझते। हमारे यहाँ बड़े सगीर में ये एक बड़ा मसला है। हमारे यहाँ दुआ ये है कि जब हम हाथ ऐसे उठाएं और फिर बेशक आप ज़ुबान से कुछ भी ना कहें, सिर्फ हाथ उठा के ऐसे कर लें तो समझते हैं दुआ होगी। यानी ये सिंबॉलिक ये है कि हमने हाथ ऐसे किए हो। जबकि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सारी दुआएं, अक्सरियत दुआएं और हाथ उठाए बगैर हैं। बहुत थोड़े मौके पर ऐसा कि आपने हाथ उठा के दुआ की हो, और बाकी ज़्यादातर दुआएं आपकी सजदे में हैं। माशाल्लाह। तो हाथ उठाकर भी दुआ करना जायज़ है, लेकिन हमारे यहाँ बड़े सगीर में दुआ समझे ही उसको जाता है जो हाथ उठा के हो। यानी मुझे कहने की इजाज़त दीजिएगा, सॉरी मैं आपकी बात काटूं, अगर कोई शख्स या खातून या बच्चा बुजुर्ग ऐसे हाथ करके बैठा है तो हम कहेंगे कि ये दुआ हो रही है। और अगर वो ऐसे करके अपने रब के आगे बैठा है सर झुका के, हाँ, तो फिर कुछ भी नहीं हो रहा, हम समझेंगे बस ये खामोशी से बैठा है। और अगर वो सजदे में अपने रब से राज़ो ने आपकी सारी बातें कर बैठा है और आ उठ के जा रहा, तो कहते लो इसने दुआ ही नहीं मांगी। वो भाई तुम्हें क्या पता कि वो कितनी दुआएं करके उठा है। इसी तरह तशहद में दुआएं जो हैं, तशहद के अंदर कबूलियत का वक़्त भी है और आपने की भी हैं, और हुक्म भी दिया कि यहाँ दुआएं करो। अब वहाँ तो नहीं हाथ उठाते, नमाज में तशहद में तो हाथ घुटनों पर रखें, और वो धड़ाधड़ दुआएं कर रहा है, ढेरों दुआएं कर रहा है। जैसे इस्लाम फेर के वो जाने लगा, कहते लो ये तो दुआ भी नहीं मांगता। तो ये ऐसा नहीं है। तो दुआ आप सजदे में करें, आप रुकू में करें, आप तशहद में करें, वो दुआ है। तो इसको समझ लें। उसके बाद आ गया कि जुम्मे वाले दिन इज्तिमाई दुआ। फिर वही ना, मैंने कहा ना कि जब तक लोगों को ऐसे ना किया जब वो समझते दुआ नहीं हुई है। तो भाई इमाम साहब खुतबे के दौरान कितनी दुआएं कर चुके हैं, आपको उस वक्त आपने आमीन भी कहा। फिर उन्होंने जब नमाज पढ़ाई तो नमाज के सजदों में भी दुआएं की हैं, तशहद में भी की हैं। अगर आप दुआ के माने को समझते हो तो आपका ये शिकवा कभी ना हो। लेकिन वो हम वही ठहरे कि हमने तो ज़बरदस्ती मौलवी साहब से ऐसे कराना है, तो मौलवी साहब भी थोड़ी देर के लिए ऐसे कार्रवाई डालते हैं और पता नहीं किसको क्या चाहिए जी, और वो क्या मांग रहे हैं। आपको चाहिए घर, उसको चाहिए गाड़ी, उसको बच्चे बीमार हैं, उसको फलां, तो वो कुछ भी नहीं कहते। वो चंद अपने मतलब की दुआएं करके ऐसे कर लेते, सब खुश हो जाते, दुआ हो गई, दुआ हो गई। तो ऐसे तकल्लुफ़ात से अपने आप को छुटकारा दें, नमाज को समझें, नमाज का तर्जमा समझें, तो फिर आपको इंशाल्लाह ये शिकवा नहीं रहेगा कि दुआ की है कि नहीं की। बड़ी साहब, आपको कौन सा मौका सबसे खूबसूरत लगता है दुआ करने? सजदे में? निदामी भाई, जो दुआ सजदे में आप करें ना, जो चस उसकी आती है वो कहीं भी नहीं आती। ब्यूटीफुल, ब्यूटीफुल। या फिर मेरा सेल्फ एक्सपीरियंस ये है कि जब आप सफ़र पर हों
गाड़ी चला रहे हों, अच्छा, अकेले हों, कोई ना आपको देख रहा हो, तो उस वक्त जो दुआ करते हैं वो बड़ी कबूल होती है। मैं भी एक बात शेयर करूं, हाँ जी, ट्रैवल करते हुए और कोई ऐसा ट्रैवल हो जो लॉन्ग ट्रैवल हो, हाँ ऑन द वे कोई 1000-500-600 किलोमीटर का आप ट्रैवल हाँ कर जी, रहे हो बिल्कुल, हाँ। और आप गाड़ी ड्राइव कर रहे हो, हाँ, तो उस वक्त जो अल्लाह से बातें करने का उस मजा आता है ना वक्त सर, एक तो तन्हाई मुयस्सर होती है, अल्लाह अकबर, दूसरा बंदा थका होता है, टूटा हुआ जब रब के साथ जोड़ता है ना तो उसको भी बड़ा प्यार आता है, तो बड़ी कबूल होती है। माशाल्लाह माशाल्लाह। और अभी बारिश हुई है ना, जी जी जी, बारिश में नहाना भी चाहिए अगर मौका मिले, और बारिश के अंदर की हुई दुआ भी बहुत कबूल होती है जी। तो बारिश के दौरान भी आप इधर उधर की मारने के बजाय चुपके से खड़े होकर दुआ कर लें, तो बारिश के दौरान की हुई दुआएं भी बड़ी कबूल होती हैं। ठीक है, आपका वो वाला मुझे वो भी बड़ा खूबसूरत अंदाज लगता है कि जी सजदे में जब आप अल्लाह से बातें कर रहे थे वो भी बड़ा खूबसूरत आपके पास है, वो तो खूबसूरत उसका कनेक्शन मज़ा ही होता है। अपना है, उसका मज़ा। अच्छा, गुफ्तगू तो जी यहाँ तक पहुँच गई है कि सजदे में दुआ करें, अपने रब से सरगोशियाँ करें, तन्हाई में करें, दुनिया में करें, ख्वास में करें, आम में करें, घर वालों के साथ बैठ के करें। आप हो सकता है कि यहाँ आप टेलीविज़न की इस पार बैठ के दुआ कर रहे हो, हम उस पार बैठ के कर रहे हो, तो दुआ तो आप कभी भी मांग सकते हैं। ये तो आपका और अल्लाह का कनेक्शन है। इस खूबसूरत नोट के साथ दुआ मांगा कीजिए, और जहाँ आपका दिल राज़ी हो वहाँ पे अल्लाह से गुफ्तगू करनी शुरू कर दिया करें। बस इससे ज़्यादा और क्या होगा कि जब आपकी और रब की गुफ्तगू हो रही हो तो तीसरा कोई हाल ही नहीं हो सकता। सुभान अल्लाह, फिर तो कबूलियत के दर्जे पे भी अल्लाह ताला दिलों के हाल जानते हैं, वो खुद कर लेंगे। नहीं जी, इसके साथ ही अपनी ट्रांसमिशन को हम इख्तिताम करते हैं। यहाँ पे मुफ्ती मौलाना मोहम्मद अजमल भट्टी साहब का मैं बहुत शुक्रिया अदा करूँगा सर, आप तशरीफ़ लाए, अल्लाह ताला हमें इसका अजर दे जी, अल्लाह ताला बरकत दे आपको। आमीन आमीन। इसके साथ ही जी नवीद निज़ामी और पैगाम टेलीविज़न की पूरी टीम को इजाज़त दीजिए, कल फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़। रमज़ान 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 रमज़ान, मग़फ़िरत का हो गया सामान फिर, रब का आया ख़ास एक मेहमान फिर, मग़फ़िरत का हो गया सामान फिर।